and made little changes in my earlier slide and this slide. So let's go. The first thing that I understand, that you need to find a stock which you'd like to own. We do many stock. We do, even I have done it. Let me admit it. Let me confess it. I have done certain shares, OSW in certain shares, where I did not actually wanted to own it, but I know for short-term benefit, or at times the stock was in the up move. There I entered and came out very quickly. But truly speaking, a classic strategy is that you should do only in those stock. I mean, recently Siram only said that. So only 15-20 stock. जिसको आप एक बार रख के अगर something happens wrong, if the market from 16,500 to it goes down to 13,000, you are not going to sell it. We are not going to bother. Only in those stock you should do option wheel strategy. So that is the difference between the last time what I said and in between whatever I said in my videos. And this is what I'm telling you. This is my final thing that I am going to do it myself. Except few speculative one also I'll be doing. It's not that I'll be totally leaving that, because I can handle certain loss because being a full-time trader. Number two, get paid while you wait to buy a stock. Warren Buffett. So I'm quoting him, the number one. So this strategy is you are waiting to buy a stock. You don't buy it. Today market 14 rupees, 1,460 is the Tata Steel. I know this will go to 1,800 for sure, at least. Metal industry will be booming for next 2 to 3 years and it will go up. But still, I'm not going to buy at 1460. I'll be waiting for it by selling a put. And every month by selling a put, I'll get paid. And when the market comes down, Tata Steel, due to some reason 100 or 150 points, that will be the time when I'll be buying into it. So this is what he said. And that is the reason Warren Buffett, this type of compounding of his shares, about 17 to 18% a year, you know where he has reached. Now, this is quite important. How to select a stock for the strategy. Some of you know it. Actually, by doing it for so many months, you are become expert, but it is for the people, those who are first time, they are looking after, looking into this option wheel strategy. The share of the company must have a promoter known for good governance and consistent year after year growth performance. ये दोनों चीज जरूरी है. Reason, if the promoter has got some problem, we have all seen what has happened with the DHFL. You have seen what has happened with Yes Bank, and we have all the oldies, we know what happened to Satyam. So the ethical governance is very important. And if the promoter has got some problem, either with SEBI or with somebody or with the government authorities, or they themselves want to make a quick buck, and what happens with them. So this is, for me, this is the point number one, which I must find out while selecting my sector, and within the sector, the stock. And growth year after year, I mean that the CAGR should be about 12 to 15% or higher. CAGR of 5 years, last 5 years, I am saying. So it doesn't mean that every year there has to be a profit of the same caliber. It may be 25% in the growth. Another year it may be 5%. But if you take an average of 5 years or 10 years, it should be around 12 to 15%. And if it is more than 50%, it is fantastic. Number two, the share should have a great potential for growth. So how do you find the potential for growth? You can find out with a little bit of knowledge. Like today, we all know which are the shares that are going to do well in long term and short term. I'll give an example. The long term, you can do one thing, the trending stock. You go to any software, charting software, जो कि Zerodha में है, सब कुछ में. You did not pay for in what is the trading view or something. I'm not suggesting for that. You just do 2-3 things. You go for simple moving average.
The time frame should be week. Simple moving average. Go for 20 days. उसमें 2 kg है. One will be 20 period. The other one will be 100. 20 and 100. Then you see which are the share in your preferred sector doing well. As long as the simple moving average line is in the uptrend continuously from last year, previous year to this year till date, you know it is in an uptrend, and it is a share which will grow up, not only because of the fundamental, which I told year after CAGR of 15% plus, but also the chart also shows that it is in an uptrend. 100, 20 is the support, nearest support, and 44 to 50 is for a long term. For a month or for a 2 month, you can go for that support. If you are buying a share there, then in that buying matlab you are selling a CSP there, there is a jabardast chance, there is a possibility, strong possibility, from there it will take support, it will go up. And if it is breaking 50, then you book loss in that CSP. Earlier I was not telling to book loss because many of my subscribers, my members, they say sir हमको इसमें stop loss लेना है या नहीं. ठीक है, अगर 50-day moving average, simple, I'm not talking about exponential, please don't go for exponential, only simple moving average. If it is going below that, you can, अगर आपको लगा कि 2-4% नीचे चला गया, from 50 से it become 55, book your loss, whatever may be the price, उसमें आपको 10-15 हजार 20 हजार loss हो सकता है. But if it is goes up, you make equal amount or bigger amount profit in the CSP that you have sold. Then there is another way of knowing potential. Example, we all know metal is going to do for next 2-3 years. So at least for 2-3 years, you need not bother. Pharma is going to do well. And IT, again, it has come back to flavor since last 1 year, more than a year, because IT is a sector where people need not go to office and they can work and can give that same kind of productivity or better productivity staying at home. And it has been proved that the way the results have come, it obviously you can see that. And it is very interesting to see the mid-cap IT sector, those are a bit costly, like LTI, like Coforge, like Mindtree. They are doing much better than the traditional superstars like TCS, Infosys. But TCS, Infosys will be there for a very long period. Need not be afraid of taking a position in these two stocks at least, if not Mindtree, Coforge, and LTI or LTTS. Now, coming to what is the other parameter? Healthcare has come for a short term. I was never investing in healthcare earlier, but why healthcare has become very important? The day COVID started, we should have known that people will be going all out to test whether they are positive or negative. And that is exactly what is happening. And if you know with a common sense that this is what going to happen, it will happen. You need not bother about what the pundits tell in the TV channels or in any other platform. So my choice here was Apollo Hospital, and then that is what is the lab, Lal Path Lab. So this kind of share you have already seen. They are more than doubled in the last 1 year, and time to time I take a trade and I come out. I do not know whether there will be, it will be forever, but it will not be forever. Probably if something COVID problem is totally now controlled and all those things are good time again coming back, probably that time they will not making this kind of profit, but it will go down. Number 3, which is going to give you excellent result, is that it is the health insurance and other insurance. And you all know there is no need. Till 64 age, I had only 5 lakhs insurance, and this year I have increased it to 60 lakhs. And those who are in the 30s, they can get the insurance for 1 crore rupees
for about 15 to 12, 20,000. It is an investment they will never regret in their life, because the cost of medical health is going up like anything. This time, HDFC Life has not done well. SBI Life, they are also not doing, because there has been a lot of claims. Now, what has happened? They now know, they are underwriters. They know that this is where we have to make money, so they have increased the premiums, and I have seen that. And actually, I am fighting with my own company. The way they have charged me for 60 lakh, that's a different story. But future belongs to shares like SBI Life, HDFC Life, and ICICI Pru. So these are the things. It has got a great potential. Now, there are two sectors where I am very shaky. I don't know, but because every 2 months or 1 month you see that another wave is coming, and this particular wave that affects two sectors. One is aviation, and number two is entertainment, like PVR, like Inox. So these are something. These are not for a very long time. Like IT, you don't bother about 5 years. Pharma, you don't bother about 5 years. Here, these are short term. So if COVID is relaxed, the COVID restrictions are relaxed, these two sectors will do well, but you never know what will happen next day if COVID is coming out. So I do not know whether we will be having that much time and information with us to get out if situation warrants. So be careful if you are investing in these two, and they are closely related to COVID. So now, coming to other sectors, long term, one more thing, I think metal is very good, and I missed that, telling that metal is very good. And out of metal, aluminum is now better than steel. And let me tell you, the steel price in India is quite cheaper compared to international price, especially in China. So there will be time. My friends know it here. 1400 से ये कभी हो सकता है 1200, but it will definitely go up much beyond 1460 or much beyond 1800. अगर चलना तो काफी चलेगा. There is only one sector where I'm little bit of shaky again for a long term. It is very good for India. That is auto. I was very positive about it, but till last 1 month, I'm not taking any position in auto. And everybody knows it. The reason behind it is the problem of chip. But I'm sure it will not be a very long-term issue. I think within 3 months, by October, probably I will be again entering into auto. The moment, this is the only thing which is affecting Maruti, for which Maruti and Tata Motors are two of the best. So they are my most favorite share in auto. And the third, my favorite is M&M, Mahindra and Mahindra. And the recent result says everything. I think out of the three, M&M has come out much better. So this is the way you find out. Banking all time है. वो banking क्या होता ना, उसमें अगर all these industries are going to do well, banking is not going, banking पीछे रहेगा नहीं. एक जगह पर थोड़ा इशू पहले होता था, that is NBFC. But if it is related to housing finance, then it is also good. You have seen how fantastic results have come in HDFC, Housing Development Finance Corporation. I'm not talking about to HDFC Bank. That is a good bank. And my favorite shares in the banking sector, there are only 4. 1 in public sector, 3 in private sector. Sir, I will not say Bank of Baroda बढ़ेगा, PNB बढ़ेगा. Bank of Baroda पिछले 4 महीना से मैं सुन रहा हूँ 80 से 90 होगा, हुआ नहीं है सर लोग. लेकिन अगर कोई थिंग, even if it is at 430, 432, State Bank of India, if there is any one public sector bank will do well, that is this one, and 3 others are ICICI Bank, HDFC Bank and Axis Bank. आप बोलोगे कोटक एंड इंडिया, अरे वैसे तो काफी लंबा है, लेकिन आई एम टेलिंग यू द जो लार्ज कैप है, लार्ज कैप इज ऑलवेज हेल्प यू, वहां लिक्विडिटी का इशू नहीं होगा. नाउ कमिंग टू एनबीएफसी, माय फेवरेट इज इंडिया बुल्स, लेकिन उसमें मैं कभी कभी बहुत बुरा फंसता हूं, जैसा कि अभी फंसा हुआ हूं. आई वाज जस्ट टेलिंग दैट because I have sold a 260 put and the ask and bid price is 14 rupees and 24 rupees and the share price is 250. So 10, 11 रुपया, 12 रुपया होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा.
But if somebody is ready to pay 14 rupees because it is in the ban period, it will be coming out of the ban period day after tomorrow, Tuesday ko shayad it will be out of ban period, and that day you will see suddenly there will be liquidity and price will be much closer to realistic price. आप देखिए अगर ट्यूसडे को आप देख लीजिएगा और वेडनेसडे मैक्सिमम, so that will come to a realistic value that time only. And probably if I'm taking a risk, I'll be taking a risk in this share. और एक शेयर मैं आपको अभी बता रहा हूं because I'm talking about my favorite, that is Realty. Realty never had such a good time like today. Bank loans are the cheapest in the history of the recent India. Then the cheapest is then there is a demand because of the COVID situation. People want bigger house so that the person, those who are working, they can have a peaceful place where they can work for their office without being disturbed. एक रूम में वाला है तो लोग 2 रूम चाह रहे हैं, 2 रूम. And that last 1 year का, if you see the loan and also the Realty percentage, the demand supply gap, you'll see that why I am telling this. And my favorite in the Realty sector in FNO is DLF. And there are others there in non-FNO I did not discuss because there are 2 other fantastic sectors because they don't have any share in FNO. That is textile. So the fundamentalist can go for a textile share or sugar share. But उसमें unfortunately FNO में उनका share है नहीं. So I'm omitting. I'm leaving that. Now coming to, yes, the 4th point, it should be in the FNO list in NSE. 3rd, the share price has a strong possibility of going up. If you have got ET Prime, you can get a fair information about those people, those who are good brokers, those who are reliable brokers, those who are good, reliable analysts. From there, you can know what is the probable price. But as an option wheels, cash secured put sellers, we are very happy. Even if the share is not going up, it is stagnating. That is better than going up. Otherwise, you are missing opportunity. जब तक Reliance 900,000 था, I was taking a position. But the moment from 11, 1200 से आ गया 1800, 1900, 2000, I stopped changing it. I'm afraid of, okay, मैं अभी कल परसों एक लिया हूं, लेकिन it is for a very short period. Probably 1-2 दिन में मैं उसमें निकल जाऊंगा. So what happens when the share price going up in like a rocket, like as happened with the Tata Steel, as it happened with the Hindalco? So that kind of thing, you feel that you are missed the opportunity. So for us, our best scenario is stagnating or little bit of going up. 1 month, the share need not go by 5% or 10%. That is the best scenario for cash secured put sellers. Then coming to, it must be highly liquid in NSE trades. Highly liquid means it is not the spot price, it is the option. मैं आपको एग्जांपल दूंगा, महानगर गैस लिमिटेड, इट इज अ वेरी गुड शेयर. उसमें आप हमेशा पैसा कमा सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ऑल्सो इन द बैन. एंड नंबर 2, द आस्क बिड प्राइस इज, द गैप इज सो मच. सो आप सोचे कि आप 16 रुपया में सेल कर दिया, आप 10 रुपया में खरीद लोगे, प्रोबेबली द प्राइस हैज गॉन अप बाय 20 रुपीज, बट यू आर स्टिल नॉट गेटिंग 10 रुपीज. द गैप इज 15 rupees, 8 rupees. So you won't get 10 rupees there. So that kind of problem will come if the liquidity is not there in option. Then share which you like to own for long term due to above reason. मैं पहला स्लाइड में वही बोला था, ड्यू टू व्हाटसोएवर रीजन. अगर शेयर प्राइस नीचे आता है तो उसको खरीदना है. अभी मैं, बिफोर आई स्टार्टेड माय स्लाइड्स, आई सेड दैट few days ago, I booked loss in Manappuram Finance for 1,93,000. One single trade, 1,93,000. Of course, I made 3 calls से कुछ 20-25 हजार रुपया शायद उसमें हो जाएगा, तो 1,70,000-80,000 the loss. But immediately I know I have to go long. I am positive in this golden company. So immediately उसका lot है 6,000 and at the same price. जो मैं बोलता हूं ऑप्शन विल स्ट्रेटेजी में, CSP becomes in the money, you should buy the stock.
तो आई बॉट 5,000 शेयर, 1,000 शेयर में अभी खरीदा नहीं हूं, थोड़ा देख रहा हूं. It is not going, even if niche goes, I don't care. So I'll keep it. And every month I will be selling the 180 to 200 call, abhi to 200, which is available for 2 rupees. So I will get 12,000 rupees for my investment of 10 lakhs rupees. 8 lakhs rupees. So 8 lakhs rupees and I get 12,000 rupees, 1.5% every month without any problem. I will be sleeping tight, no issue. I am getting 1 to 2% every month. And if the share price goes up to around 2,000, I will buy the balance 1,000 shares. And मेरा जो 1,80,000 का जो लॉस हुआ है in a single month, 5,000 multiplied 40 itself is 2 lakhs rupees. 160 or 200, the gap is 40. I've got 5,000 shares, so 5,040 itself is 2 lakhs rupees. तो एक झटका में मेरा पैसा आ जाएगा. I did not worry about that. Then I'm ready to keep it for long term. गोल्ड फाइनेंस कंपनी का मुझे थोड़ा जितना समझ में है मैं यही जानता हूं. If we people, we don't want to sell, we want money. So that's the reason due to COVID period, people had deposited money with the Manappuram and Muthoot. They have taken early. But why there is a fall? It is because of the internal price. And one single day, it fell by 4 to 5%, 3 से 4,000 रुपए जैसे गिर गया. So people are thinking that it will have effect on Muthoot and Manappuram, which is not something unrealistic, is the thing. But in the long run, gold price is going to go up. It will not remain at 45, 46,000. It is definitely going up. I think by Diwali, it will be around, जैसे कि बाकी लोग कहते हैं, I'm not an expert in technical charts and commodity, but ऊपर जाएगा. So I'm not very much bothered about that. Then seventh is the must have enough capital to buy stock. I said from the beginning in my disclaimer that with 2 lakhs rupees or 3 lakhs rupees, please do not do option wheel strategy. That money you please plow into SIP, SIP, or directly invest in small shares like Vedanta, Hindalco, Tata Steel, HDFC Bank, HDFC or ICICI, and you grow it. I did not have 25 lakhs rupees just like that. I have to work for so many years. I have to invest in as a small investor in SIP, small way. Then I made a corpus. It is not that from day one when I'm starting doing it, this job, as I told you last time, 83, 84 से मैं invest कर रहा हूँ. So you make a corpus in a longer period. But problem कहाँ होता है? Problem is that when you make profit for 1 month, 2 months, 3 months in option strategy or any other strategy, we feel we can beat the market. Please let us all remember, market is more smarter than any of us and all of us. It doesn't, हमारे विश के हिसाब में वो चलता नहीं है. तो only we can save ourselves if we are following this 7 thing. According to me, these are the 7 way of selecting a stock. And as I said last time, I was telling somebody a jumla phrase that you should go for trending sector growing stock. So आप sector पहले select कीजिए, then out of that sector, those shares, those are growing stock, you select them. So that is one way of beating the market. And this is something I do it. I personally, I consider very much. Never use borrowed money to invest or trade. It's pure loss to big money. आप लोग से ये लोग कई लोग सुने होंगे, बड़े-बड़े लोग भी बोले हैं. I also consider it very important. मैं कभी भी borrowed money में invest नहीं करता हूं या trade करता हूं. और personally, many of you may not agree, but I consider margin money is also a borrowed money. Because हम उससे लेकर हम सोचते हैं कि छोटा मोटा शॉर्टकट, अभी टाइम है, मैं कुछ पैसा निकाल कर बना लूंगा. लेकिन कभी कभी भाग्य साथ नहीं देता है. 4 महीना 5 महीना हर एक महीना हम लोग 5-10 हजार कमाते हैं, बट सडनली देयर विल बी अ टाइम व्हेन वी लूज 1 लाख रुपीज. सो टोटल जो 5-6 महीना में बोरोड मनी में हम लोग पैसा जमाए थे, क्योंकि जब प्रॉफिट होता ना, वी डोंट वेट फॉर अल्टीमेट प्रॉफिट.
हम लोग को थोड़ा बहुत मिल गया तो निकल आते हैं, लेकिन जब लॉस होता है ना, हम लोग सोचते हैं, वी थिंक अरे इट विल कम अप, इट विल कम अप, इट विल कम अप। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी होता नहीं है, like the happens with the DHFL, Yes Bank and others. And some people were advocating for an idea few months back in the TV, क्या भाई ये जो 12 रुपया का आइडिया है, वोडाफोन आइडिया है, it will be 25 rupees in a year. And just listen to them, what they are telling now. So let us not speculate on this kind of things, this kind of shares. Now, how to do it? Many of you know, but this is the classic example of how to do it, option wheel strategy. सबसे पहले क्या सिक्योर्ड पुट सेल करना है, सबसे पहले कवर्ड कॉल सेल नहीं करना है, सबसे पहले पुट सेल करना है. Let us take an example of Tata Steel. The spot price of, I made this at 2:40 PM on 10th August. मैं जब 10th अगस्त को बनाया था तब इसका प्राइस था 1378 and you all know आज 1460 है. CSP is the less about 10%. अगर 1378 is the price, you should go for below 10%. मैं 10% लिखा हूं, but you need not. Everything should not be followed exactly the way I'm saying. You can go for 8% also, 6% also. If you are if you are very sure about this company's growth, you can sell at the lesser percentage from the spot price. But around 8 to 10% you should sell. एंड यहां मैं एग्जांपल लिया हूं 1240 का जो सेल है, 1240 का जो प्राइस है, आप उसका सेल करना. लेकिन 1240 अगेन इज नॉट ए वेरी लिक्विड स्ट्राइक प्राइस. सो वी विल पुट बिफोर, नॉर्मली यू शुड पुट ए सेल बिफोर 30 to 45 डेज. अगर अगला सितंबर का, अगस्त 15 का बाद 16 तारीख से आप शुरू कर दीजिए सितंबर का पुट सेल करना, जहां जहां लिक्विडिटी है, like ITC is there, Reliance is there, Tata Steel will get liquidity. So there are not many, but gradually when goes towards 30 days, you will get much more, many opportunity will be there in your preferred shares. So within this 30 to 45 days before expiry, next expiry is on 30th September. Next one is 30th September. So 30th सितंबर के लिए 45 दिन शुरू हो जाता है 16 अगस्त से. तो 16 अगस्त से लेकर अप टू 31st अगस्त you start selling. If you are a fresh entry leader, this is the right time to take the entry. And coming back to option chain, we will sell a put. On that day it was available for 25 rupees. 25-26 रुपया था. उस समय उतना लिक्विडिटी नहीं था, बट अभी आ गया होगा, अभी 25-26 रुपया. सो अराउंड 23-25 उसका सेल कर दीजिए. एंड द वन लॉट ऑफ टाटा स्टील इज 850. सो बाय सेलिंग द टाटा स्टील 1200 पुट सितंबर 21, वी इंस्टेंटली रिसीव इन आवर अकाउंट 25 into 850, 21,250. और इस 21,250 के लिए हमको शायद 2 लाख रुपया और 2,20,000 का मार्जिन का जरूरत होगा. द रिक्वायर्ड मार्जिन जो है उससे थोड़ा हम लोग, तो हम उसका क्या करेंगे, उसका मार्जिन चेक करेंगे. नॉर्मली आई चेक माय मार्जिन विथ जीरोधा. तो आप कोई भी कहीं भी कर सकते हो, लेकिन मैं कभी कभी ऑफस्टर्स का मार्जिन कैलकुलेटर देखता हूं. आई फाउंड दे डोंट गिव ए प्रॉपर पिक्चर. So Zerodha is more authentic in calculating the margin, and I found that day that the margin is 2,60,254. Please note that this margin changes. जो 15-16 अगस्त को अगर ये मार्जिन है ना, so it changes because of, तो जितना क्लोजर टू एक्सपायरी होगा उसका स्पॉट प्राइस का ऊपर नीचे होना, on that basis daily this margin price will change. So keep that in mind. If you are doing a one trade, so you should have at least 3 लाख रुपीस with your broker. तो 2,60,000 का अभी का प्रेजेंटली उसका मार्जिन है. बेस्ड ऑन आवर मार्जिन, आवर रिटर्न इज अबाउट 7%. 21,250 is 7% of our margin kept with broker, 3 lakhs in about 45 days. Now कुछ लोग बोलते हैं कि how to calculate return. Let us not be bothered about what is the return, too much on return. At least we should know that how much we are earning. कोई बोलेगा कि नहीं हमको पूरा 8 लाख का ऊपर में मुझे हिसाब करना चाहिए, मेरा रिटर्न कितना है. बट व्हाई शुड आई, उसका कुछ कारण है. व्हाई शुड आई नॉट, व्हाई ओनली इन द मनी विद द ब्रोकर और द ओरिजिनल कैपिटल. लाइक सिंस लास्ट
since the 1st of April, my capital, original capital with the broker is 75 lakhs, say 75 lakhs. So that is my capital. So my profit and loss will be calculated on that money, and that money is totally with the broker. It is not that total money I have already spent on margin. मेरा broker के पास अभी भी 20-25 लाख रुपया ऐसा है, 15 to 20 lakhs है, so that I can take, I have to buy shares because I have sold certain CSP. If they come down, I have to buy shares. And there are many shares where I have already 30%, 40%, 50% share खरीद चुका हूं. So that is why so much margin has been, so much money has been kept with the broker. Now, go on doing that and make money every month. As Warren Buffett say, while waiting to buy the stock, you should make money. And this is what he meant. That आपको अच्छा सर में, हाँ एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, टाटा स्टील का जो IV है, implied volatility है, वो ज्यादा है. That is why you get that much. You will not get, because इंडिया का VIX जो है ना 12% का आसपास आ गया है आजकल. If you are going to sell हिंदुस्तान यूनिलीवर जो स्टेबल शेयर है, you will not get more than 3%. Let me tell you. बट वहां आपका पैसा बनाने का वहां भी मौका मिलेगा. लेकिन हम लोग का आदत हो चुका है पिछले एक साल में, जब 20-25 के बीच में VIX चल रहा था, उस समय वी हैव मेड गुड मनी. अभी वो पॉसिबल नहीं है. वी कैन नॉट मेक दैट काइंड ऑफ मनी एज वी डिड लास्ट ईयर बिकॉज VIX हैज ड्रॉप्ड लाइक एनीथिंग. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इन दिस स्ट्रेटेजी यू मस्ट हैव, आपके पास इस स्ट्रेटेजी अगर टाटा स्टील में कर रहे हैं, आपके पास 10,54,000 मिनिमम होना चाहिए. एंड आई ऑलवेज से दोज हु हैव लिसन्ड टू माय अर्लियर वीडियोस दैट आप पूरा पैसा को आप मत रखिए. आप 3 लाख या 4 लाख 30% और 40% मनी यू कीप इट विथ योर ब्रोकर. रेस्ट 50-60% यू कीप इन योर बैंक इन ए स्वीप अकाउंट, जिसमें कि सीनियर सिटीजन को करीब 6% रिटर्न आ जाता है. और ऐसा बैंक लाइक जना, sorry, what do you call that? That is a good bank. It's not a bad bank. It is Ujjivan Small Finance Bank. They give 7% up to 25 rupees savings bank account. I'm not talking about FD. तो वहां कोई पेनल्टी नहीं होता है. If you keep it in FD, the moment you bring out the money, there will be a penalty. So don't put that in FD. आप उसमें से 5% से लेकर 7.5% तक आप कमा सकते हो. You keep that. That money is earning its own. जब तक पैसा जरूरत नहीं हुआ, that money did not be transferred to broker account. So from 3-4 lakh rupees, you sell in a very good share. Or if you have got 10 lakh rupees, as I said in the beginning, maximum you can sell 2 cash secured put, but not in shares like Steel Authority of India, जिसका requirement है 16 लाख, not in Nalco, जिसका requirement है 15-16 लाख, not in Tata Steel. You can, there are several shares those who are available for 6 lakh rupees. I think those are people are हमारे जो ग्रुप्स है उसमें वो लोग शेयर करते रहते हैं. which are the share 6 lakhs का अंदर में उनका लॉट होता है 6,20,000. some good shares are there. One of the best share is Reliance. तो उसमें आप 2 पुट सेल कर सकते हो. You can make some money. उसमें 4 लाख रुपया रखिए, 2 लॉट आप सेल कीजिए. But be ready, be watchful. If price is crashing, एक में आपको शायद लॉस बुक करना पड़ सकता है. That is why in the beginning I said stop loss is not a criteria mentioned in original cash secured put, but one need not wait till 1,93,000 loss unless you want to really buy the shares. तो आपको 15-20 हजार अगर दिखता है, आपको झटका लग रहा है and you really are not interested, वैसे ही चले गए, तो आप स्टॉप लॉस बुक कर लीजिए. Some of the people will agree with me and some may not agree with me. लेकिन स्टॉप लॉस आप कर सकते हो. It is your money. This strategy is not going to put money in your pocket. Your own thinking is going to put money in your pocket. So if you think that इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं ले सकता हूं, even if price goes up, आप बुक कर लीजिए. Otherwise, if you are sure that I am going to buy a share like I did, then don't bother even if it is going down by 2 lakh rupees. तो आपका अभी बाइंग कॉस्ट कितना हो गया? इन केस योर स्पॉट प्राइस बिलो 240, अभी 1240, आप 1200 रुपीज या 1240 में आप अपना जो बेचा था, जो आपका जो कैश सिक्योर्ड पुट, इफ इट गोज डाउन
देन आपका बाइंग कॉस्ट होगा 1240 माइनस द प्रीमियम दैट यू हैव कलेक्टेड 25 रुपीज, सो योर बाइंग कॉस्ट विल बी 1215. Please note, even if market price goes to 1100 of Tata Steel, it goes to 1000, आपके लिए आपका कॉस्ट रहेगा 12 रुपीज 1215 पर शेयर, क्योंकि यू आर कमिटेड टू डू ट्रेड एट दैट प्राइस. सो इवन इफ प्राइस गोज डाउन, आपको कॉस्ट इतना ही लगेगा. नाउ व्हाट यू हैव नाउ बॉट द शेयर्स. अब करना क्या है, मार्केट नीचे चला गया, आप टाटा स्टील ले लिया है 1215 में, आपका प्राइस आया 215, लेट अस उसी में रहते हैं. नीचे गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपका शेयर में प्रॉफिट होगा, बहुत नीचे खरीदोगे आपका लॉस होगा डेरिवेटिव सेक्टर में, दोनों को मिला लोगे तो 1215 है. सो नाउ व्हाट शुड यू डू, नाउ कम्स कवर्ड कॉल. सो नाउ यू हैव गॉट 850 टाटा स्टील शेयर एट 1215, यू सेल 1340 कॉल, 10% ऊपर या 8 से 10% ऊपर, और किया था बिकॉज इट विल बी नेक्स्ट सीरीज. तो उस समय फिर अगेन आपको करीब 20 से लेकर 25-27 रुपया तक आपको प्रीमियम मिल जाएगा. गो ऑन कलेक्टिंग योर प्रीमियम एवरी मंथ, आइदर बाय कीपिंग द स्ट्राइक प्राइस सेम और डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द स्पॉट प्राइस. स्पॉट प्राइस जैसा ऊपर नीचे होता है, शायद आपको उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा. यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट एनीथिंग टिल द स्टॉक प्राइस डजंट गो मच बिलो 1215. तो आपको अपना प्राइस में इतना करना है, उतना दूर रखना है, सो दैट यू गेट 1 to 2% पर मंथ. एंड अगर किसी महीना आप जो कॉल सेल किए हो एट 1340, इट बिकम्स इन द मनी, दैट मंथ यू आर गोइंग टू मेक ए किलिंग, बिकॉज यू विल गेट द डिफरेंस ऑफ 125 रुपीज द स्पॉट प्राइस जो आप खरीदे हो 1215, 1340 minus 1215, that is 125 rupees, and premium you have already collected multiplied by 850, 1,27,000. So आपका जो कैपिटल था 12,92,000. कैसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आपका तो शेयर खरीदने में लग गया 10,32,000. another 2,60,000 is your margin for selling the call. तो टोटल आपका जो पैसा मिला, जो आपका जो खर्चा हो रहा है, जो आप जमा किए हो, करीब 13 लाख. तो दैट 13 लाख में this 1,27,000 in that particular month where your call will become in the money, it is 9.76%. तो हर एक महीना जो 1%, 1.5%, 2% कर रहे हो, और एक महीना 9.76 मिल जाता है, so it will be about 2%. It will be about 2% throughout the year अगर आप उसको निकालोगे आपका रिटर्न. तो आपका दैट इज द फैंटास्टिक रिटर्न. और दिस इज ये वो रिटर्न, हम लोग लकी है 5%, 8%, 6% किसी किसी महीना आ जाता है, बट दिस इज द वे एटलीस्ट टू बी सेफ एंड मेकिंग 1 to 2% रिटर्न. 1% नहीं, इट विल बी अराउंड 2%, आई कैन टेल यू. सो दिस इज व्हाट शुड बी डन. स्टार्ट विथ ए कैश सिक्योर्ड पुट. इफ इट गोज इन द मनी, आई एम समराइजिंग इट, बाय इट, then sell the call, go on selling the call every month till your call becomes in the money. अभी क्या है ना, this is something for the little bit who are veterans. I don't recommend it. It is not the part of the cash secured original officer will strategy, but मैं कुछ वीडियो इसमें लाया था, तो उसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा. It is staggered buying and improvisation. क्या होता है, कभी कभी हम लोग का कैपिटल का इशू आ जाता है शॉर्ट टर्म में. सो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, आई टोल्ड यू इन द 10 लाख है, आपका पास 2 पुट है, और दोनों पुट को आप यू आर नॉट एबल टू स्क्वायर इट ऑफ वन, और आपको दोनों खरीदना पड़ रहा है. सो यू मे नॉट गेट सडनली 13-14 लाख. 10 लाख तो है, 14-15 लाख के लिए आपको क्या करना है. सो एक बेनिफिट है, आप देखिए कवर्ड कॉल यू कैन ऑल्सो मेक अगेंस्ट फ्यूचर. कुछ लोग मुझे बताते रहते हैं आप फ्यूचर कर लो, लेकिन फ्यूचर में कुछ नेगेटिव है, उसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे, बिकॉज दैट इज ए सेपरेट टॉपिक. फ्यूचर के अगेंस्ट में कवर्ड कॉल सेल करना क्या होता है. बट आप फ्यूचर में करने से और इसमें करने से फायदा यही है, जब व्हेन यू बाय ए फ्यूचर, उसका प्रॉब्लम ये आ जाता है कि फ्यूचर वंस यू बाइंग ए फ्यूचर एंड सेलिंग ए कॉल, उसमें तो 10 लाख रुपया में हो जाएगा और ज्यादा पैसा बचेगा. लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब फ्यूचर में एवरीडे वो एडजस्ट M2M एडजस्टमेंट होता है, दैट में गिव यू प्रॉब्लम.
इफ द प्राइस इज गोइंग डाउन बाय 100 रुपीज इन फ्यूचर और उसका लॉट है 500, आपको दिख रहा है 50,000 लॉस, बीइंग अ स्मॉल इन्वेस्टर इट्स अ बिग लॉस, आपका आंखों में दिख रहा है। अरे फिर आपका अगला महीना आप उसको फिर रोल ओवर करोगे, सो यू आर बुकिंग लॉस इन दैट पर्टिकुलर मंथ। लेकिन अगर आप कैश में शेयर में खरीदते हो, यू डोंट बॉदर मार्केट नीचे जाने, बिकॉज द फर्स्ट लाइन आई सेड यू डू दिस स्ट्रेटेजी टू बाय गुड स्टॉक एट द cheaper price, at least 8 to 10% cheaper than the market price. So that way, what is this improvisation retail? When you are buying a share, the difference in buying with cash is that you did not buy 100% share on the same day. आप उसका लॉट अगर 1000 है, you can buy 30 to 40%. Don't buy less than that. 30 to 40% शेयर आप उसको खरीद लीजिए। बाकी उसका जो कॉल है, डोंट सेल इट वेरी नियर योर द स्पॉट प्राइस, क्योंकि सडनली एक स्पाइक आ गया ना तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। सो यू सेल द कॉल 8 to 10% अबव द करंट प्राइस, जहां आप 30-40% शेयर यू हैव बॉट इट, फाइन। तो आप उसको लेकर तब तक पैसा कमा सकते हैं, यू डोंट हैव टू बॉदर डाउन। इसमें दो सिनेरियो हो सकता है, शेयर गोइंग डाउन, शेयर गोइंग अप, ठीक है ना। आप जो शेयर खरीदो, इफ शेयर इज गोइंग डाउन, डोंट बी इन ए हरी टू बाय एडिशनल शेयर अनलेस यू हैव ए रीजन। मैं आपको पूछूंगा इसका मतलब क्या है, अनलेस यू हैव ए रीजन। इफ इट इज गोइंग डाउन, यू डोंट बॉदर, आपको मौका मिलेगा, कभी भी आप खरीद सकते हो ना, नीचे जा रहा है ना। लेकिन आपका 30-40% में 10% का अबव का जो कॉल सेल किए हो ना, द रिटर्न इज वेरी गुड, 5-6% आपको रिटर्न मिल रहा है with just 30-40% of share. So don't be in a hurry if it is going down, rather you may get, but if you are sure a company like Tata Steel या company like HDFC Bank cannot go below 1300, अभी उसका 1500 है, in that case 1300 जाना बहुत मुश्किल है, 1400 का पास चला गया तो बहुत अच्छा है। then in that case तो आउट ऑफ 300-400, मान लीजिए उसका लॉट भी 1000 है, तो वहां 100 शेयर खरीद सकते हो, 100। Don't buy 50%, balance 60%. Don't buy just 100 शेयर, थोड़ा प्राइस नीचे ले आने के लिए, थोड़ा प्राइस इसका नीचे ले आने के लिए। So you will get lot of leverage by not buying the full quota of shares, so that you can adjust your call sell according to the market price, share price. तो उसमें आप even you can sell the Tata Steel share at 1300, you don't bother, क्योंकि आप 30% खरीदे हो 1200 रुपया में। Even you can sell it at 1200, क्योंकि प्राइस अभी 1000 हो गया है, और जब बढ़ेगा तो क्या करना है। But if the spot price is going up, then what to do? Then you go on buying balance share of the lot at regular interval till your strike price. आप जो भी स्ट्राइक प्राइस रखे हो एट ए रेगुलर इंटरवल, मान लीजिए मैं एग्जांपल वही लूंगा टाटा स्टील का, मान लीजिए 1300-1400 रुपया है शेयर, और आप 1600 का कॉल सेल किए हो, तो यू वेट, आप उसको आप 300 शेयर, आप 200 शेयर खरीद लिए हो, आपको 650 शेयर और खरीदना है। यू हैव टू, हाउ यू हैव टू बाय, फॉर एवरी 20-25 रुपीज यू टेक ए कॉल। ऐसा कोई गणित नहीं है, आप अपने तरीका से कीजिए। जब इतना रुपया बढ़ गया तो मैं और 100 शेयर खरीद लूंगा, और 20-25 रुपया हो गया तो और 100 शेयर आई विल बाय अनदर, एंड 20 रुपीज 30 रुपीज इन द स्पॉट प्राइस गो, देन आई एंड यू बाय टिल it reaches 1590 or 1595. Keep some money up to 1590, 1595. Don't buy the full lot beforehand, क्योंकि who knows, it can again come down. It can again come down. So ये नहीं कि मेरे पास जितना कैपिटल है मैं उसको वहां सब 1500 में सब खरीद लूंगा। No, there is no need for it. Let it come to the year, because you will be still making money. You will be still making money. जो आप पहला जो नीचे जो शेयर खरीदे हो ना 30%, वो अच्छा रिटर्न देगा। हाँ, यू कैन से भैया आई मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक 1 लाख रुपीज प्रॉफिट इन 1 लॉट, मेरे को 20-25 हजार मिला। भाई वेयर इज द प्रॉब्लम? बिकॉज यू हैव सोल्ड द कॉल एट ए प्रीमियम ऑफ 14,000। तो आपको अगर इस हिसाब से आपको 20,000 मिल रहा है, फ्रॉम कैश सेगमेंट यू गेट सम 40,000, और फ्रॉम वहां से कुछ लॉस हुआ, मिलाकर 20,000, यू आर स्टिल मेकिंग ए गुड रिटर्न। बिकॉज आप जो सेल किए थे 1600 का जो कॉल,
उसमें आपका टोटल प्रीमियम शायद 12-14 हजार रुपया था. So please don't be in a hurry. It is a tactical thing. If you are doing it, you may follow this. You may, आप अपना एक अपना तरीका है, but I give you an idea. So you do your own improvisation. Probably the newbies may, they are all veterans. So something around this you can do it, and you can make money following this. Now, thank you very much. My in 45 minutes I have closed, and if you have got any question, I will be answering your question now. But I also post my trades live. जो मैं trade करता हूँ, मैं live post करता हूँ. One is my Ranjit option discussion in Telegram and my Ranjit in Twitter. You can ask any question. If you are not remembering today, you can ask me any day, any other day. No issue. Thank you very much. Thank you very much, Kothari Saab, giving me this opportunity. Thank you very much, all the listener, all the audience. Lot of thanks to all of you for bearing me for 45 minutes. Thank you, sir. थैंक यू मोंटी जी. मोंटी जी, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि जो आपका इम्प्रोवाइजेशन वाला जो स्ट्रेटेजी था, वो स्ट्रेटेजी मैंने कहीं भी नहीं देखा. एंड दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक स्ट्रेटेजी. अगर आप थोड़ा सा भी एक्टिव हैं तो दिस कैन मेक यू रियल गुड मनी. क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कवर्ड कॉल में जो होता है वो ये होता है कि अगर वो शेयर गिर गया तो बिग नॉशनल लॉस होता है. जब हम कवर्ड कॉल करते हैं और कवर्ड कॉल में जैसे आपने टाटा स्टील का शेयर लिया और वो अगर 100 रुपए गिर गया तो जो शेयर आपके हाथ में है उसमें ह्यूज लॉस हो जाता है. तो ये जो आपका इम्प्रोवाइजेशन वाला जो स्ट्रेटेजी है, दिस इज एन एक्सीलेंट स्ट्रेटेजी. क्योंकि आपने 30% ही शेयर लिया है तो आपका 70% पे जो नॉशनल लॉस हो रहा था वो बच गया. राइट. ठीक है ना. तो लॉस नहीं होना चाहिए, कम प्रॉफिट है चलेगा मेरे को. एग्जैक्टली. हाँ, प्रॉफिट कम है चलेगा, लेकिन कम प्रॉफिट. We should be happy with कम प्रॉफिट. हाँ, लेकिन हमेशा 1 लाख 2 लाख का प्रॉफिट करने की कोई जरूरी नहीं. तो ये स्ट्रेटेजी आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मोहन जी ने बताया है. तो इस पे यू कैन वर्क ऑन इट. अगर आप कवर्ड कॉल के बहुत ज्यादा वो हैं तो पार्टली 25% 30% शेयर पहले खरीदिए, कवर्ड कॉल बेचिए. शेयर नीचे जाता है तो कुछ मत कीजिए, शेयर ऊपर जाता है तो थोड़ा करके खरीदते जाइए जब तक आपका वो स्ट्राइक प्राइस नहीं आता. दिस इज एक्सीलेंट स्ट्रेटेजी. एवरीबडी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. क्योंकि नॉशनल लॉस नहीं होगा इसमें. नहीं तो हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाता है कवर्ड कॉल के अंदर. आपने कोई भी शेयर लिया, BHEL का ले लो या आपने रिलायंस का शेयर ले लो, अगर वो शेयर गिर गया तो उस शेयर को आपको लॉन्ग टर्म में रखना पड़ता है. इस स्ट्रेटेजी में अपने को ये फायदा है. तो दिस यू कैन यूज इट सर्टेनली. अभी किसी के क्वेश्चंस हैं OWS के ऊपर या इम्प्रोवाइज वर्जन के ऊपर, यू कैन आस्क द क्वेश्चन. वी हैव द एक्सपर्ट हियर, ही हैज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन दिस थिंग, so he will be able to guide us. Any questions from anybody you can raise. Yeah, you have to unmute and then you have to ask the question. Please unmute yourself then ask the question. Yeah, Ramaji. Mr. Ranjit, the WebEx app, after WebEx, when I hear you, you bring in more and more of, passion and, the way you deliver with emotions is simply amazing. I really don't find words in my vocabulary. You make it so simple. In fact, I hardly get doubt after I listen to your WebEx every time, because so much of passion and, sincerity in, sharing your knowledge. It's a very, very amazing quality. My hats, I don't have a hat, but I will say hats off to you. And God bless you. And we get many more such interesting presentations. I have one question in that you had laid down 7 points, to check, before we select the script. But one thing, what was happening in the last, because I'm not doing much option trading these days, because I'm trying to learn more and focusing more on equity buying. So this pharma sector, I was very closely watching. Despite meeting all the 7 conditions also, the way certain, scripts like Dr. Reddy, Lupin, and then Aurobindo Pharma, the way they were beaten after Q1, maybe because of many US regulations and US related issues, which, small investors and small retail, investors, they can't even understand that. So, it was not very comfortable getting into pharma in the last, particularly I saw during this month of July end to, the August beginning, the first fortnight of August.
So I would like to hear your view on that. What a fantastic question, which I did not. I should have told that actually. Right. Thank you, sir. Mr. Ji, क्या है ना? Anytime I am, when Cipla was 200 rupees before split and about in 2011, I'm talking about 2011. That time 200 rupees Cipla. Okay. So I was never buying any. That time option तो मैं उतना नहीं करता था. Option बहुत बाद में आया ना. Then 2000, I was very scary about the pharma shares. क्यों? Every few other days you will say there is a inspection in the plant by US authorities, or US FDA will come out with some problem, or there will be a problem that उनका recall of the medicine because of some problem. They are very strict. America में बहुत strict है pharma. US FDA is very strict organization. So this is always it will be there, and unfortunately it happened with अपना जो result है Lupin का Dr. Reddy. But let me tell you, sir, Dr. Reddy is still an excellent share. आप उसको खरीद कर regret नहीं करेंगे. आपका 5,000 तो मैं 1-2 महीने में expect कर रहा हूं. Again going back to 5,000. Lupin, because with the bad result it has gone down. All this share what you said, मेरे को थोड़ा Aurobindo में थोड़ा problem है मेरे को. Even Sun Pharma, but luckily this time Sun Pharma came with a very good result. So pharma में आप एक चीज कर सकते हो, you don't take a speculative view on the result, क्योंकि ये लोग जो बोलते हैं ना result वाले, कभी-कभी इतना उल्टा पड़ता है. NMDC का जैसा आप देख रहे हो. Once upon a time I was having 19,000 NMDC. अभी तो मैं इसको घटा दिया हूँ. So these are fantastic share, but there are some reason. ITC क्यों नहीं बढ़ रहा है? ITC is a very good share, but luckily अभी 211 आ गया. लेकिन the same thing happens with this. It is all the perception of the people for which Dr. Reddy has suffered. Lupin has suffered, but Cipla तो अभी भी अच्छा है सर. Cipla कोई उतना प्रॉब्लम नहीं दिया Cipla में अभी तक. बट आप इसमें CSP 8-10% करोगे तो उतना घाटा नहीं होगा if you are doing it. But I will say that my recommendation will be there. Wait for the result. If it is the result month, don't do anything. You do it September. You do it in August, September, but don't do it in the month of October. इसका result October में आना है. वेट कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा, देन डू इट. थोड़ा लॉस प्रॉफिट कम होगा, लेकिन लॉस तो नहीं होगा. प्रॉफिट कम होगा, लॉस नहीं होगा. सो आवर प्राइम कंसर्न शुड बी सेविंग आवर कैपिटल. मेरा कैपिटल में झटका लग जाएगा ना, शायद मैं कुछ दिमाग में झटका लगना शुरू हो जाएगा. लेट अस नॉट डू एनीथिंग स्पेकुलेट. रिजल्ट मंथ में थोड़ा वेट करें. हाँ, थोड़ा प्राइस ऊपर चला जाएगा, लेकिन हमको फिर भी फायदा होगा. 8-10% बिलो आप. तो दैट इज द ओनली वे रामकृष्णन साहब यू कैन डू इट. अदरवाइज सर दीज टू आर नॉट बैड सर. लुपिन एंड दीज आर नॉट बैड सर. इवन कैडिला इज नॉट ए बैड सर. इवन कैडिला इज नॉट ए बैड सर. आप उसमें भी आप स्टेक ले. लेकिन माई फेवरेट इज डिविस लैब. साउंड कट गया क्या? अनम्यूट करो. In fact, Divis is also my favorite, but then it has gone up so much, touching almost 5,000 rupees. Little scared to enter. Sir, मेरे पास Pfizer है. I have got Pfizer. अभी 6,000 है sir. Why are you bothered? Okay. 8,000. Oh, it's you know why? You should know why Divis Lab is doing well, not others. Okay. ना वो बेसिक मेडिसिन तैयार कर API करता है ना उसका, तो उसका वो सबको मेडिसिन उसका बेस्ट प्रोडक्ट वो सबको सप्लाई करता है, तो उसका लॉस होगा नहीं. और दैट इज दे आर बेनिफिटेड बाय द प्रॉब्लम इन चाइना. सो 3,000 से दे डिड नॉट टेक मच टाइम टू कम टू 5,000, बट स्टिल 4,600 and 4,500 आर गुड CSPs. Okay. Thank you sir. Thank you. सर एक बात बताइए, आपने अपोलो हॉस्पिटल के लिए बोला था, लेकिन 10-15 दिन से अपोलो हॉस्पिटल 100 पॉइंट ऊपर जाता है, वापस 100 पॉइंट नीचे आता है. क्या आपको तो 400 पॉइंट नीचे करना है ना?
अच्छा सर, हाँ मैं एक चीज, अच्छा बढ़िया पॉइंट है सर। कौन साहब पूछ रहे हैं? कौन साहब पूछ रहे हैं? उनका चेहरा नहीं आ रहा है। अच्छा, उसका एक उपाय है, आप वो जो मैं बताया ना, सिंपल मूविंग एवरेज वाला, सिंपल मूविंग एवरेज वाला वो लगा दीजिए आप। जब तक अपोलो इज नॉट कमिंग टू 20 डेज सपोर्ट प्राइस, डोंट सेल ए सीएसपी, डोंट सेल ए सीएसपी इफ अपोलो इज नॉट, डोंट, वो 100 रुपया क्या ऊपर जाता है उसको मत देखिए। अपोलो इज ए गुड शेयर, आप उसका 20 डेज सपोर्ट प्राइस तक आने तक इंतजार कीजिए। इफ इट इज नॉट कमिंग, डोंट बदर, देयर आर मेनी अदर शेयर्स आर देयर, देयर आर 20-25 गुड शेयर आर देयर इन निफ्टी जो कभी प्रॉब्लम नहीं देगा आपको। तो व्हाई वी शुड कंसंट्रेट ऑन अपोलो? विल सी लाल पाथलैब, विल सी अदर्स, विल सी माइंडट्री। जो भी 20 के पास आ गया कोई भी अच्छा शेयर ना, दैट इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। एंड एज आई टोल्ड यू, और सेफ खेलना चाहता तो यू गो फॉर 50 डेज एसएमए। अगर और सेफ्टी आपको चाहिए, गो फॉर 50 डेज सपोर्ट। अगर 55% नीचे आ गया तब तो निकल जाइए, स्टॉप लॉस लगा दीजिए, डोंट बॉदर अबाउट दैट, आप उसमें चिंता मत कीजिए। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मूविंग एवरेज जो है वो 20 डेज पे आ जाना चाहिए, जो ऊपर लाइन चल रही है, लाइन ऊपर चल रही है, वो लाइन अच्छा शेयर तो 20 डेज का नीचे जाएगा नहीं। जिसका ट्रेंड, जिस सेक्टर का ट्रेंडिंग ग्रोथ, जिसका ट्रेंडिंग शेयर है ना, वो 20 डेज का आसपास आना मुश्किल है। लेकिन कुछ शेयर है जो कि ट्रूली स्पीकिंग 44 डेज इज द राइट। 50 भी बहुत नहीं, कभी कभी ना आएंगे 50 तक, 50 टच नहीं करेंगे, ऊपर फिर निकल जाएंगे, तो आपका हाथ से ना अपॉर्चुनिटी निकल जाएगा। तो इसीलिए वो संजय भानुशाली करके एक है, आप देखा होगा यूट्यूब में, ही गोस फॉर 44 डेज। इवन मैंने एक सॉफ्टवेयर खरीदा हूं एक कंपनी से, वो उसका जो है, उसका रेडीमेड जो उसका जो टारगेट है 44 डेज है। कोई भी शेयर 44 डेज टच करके ऊपर जाता है तो ऐसा बुम देता है। आप खुद ट्रायल कर दीजिए, जीरोधा में आप 10-15 शेयर रख दीजिए, आप 44 डेज का एक तो एसएमए उसमें डाल दीजिए और एक एक करके चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। जैसा ही 44 टच होगा और ऊपर गया तो चला जाएगा कहां कहां ऊपर, 1 महीना 1.5 महीना तक आप पकड़ नहीं सकोगे, एंड यू मेक मनी फ्रॉम दैट। देखा मैंने 44 डेज वाला, उसका देखा मैंने। 44 डेज बहुत अच्छा काम देता है। बट इफ इट्स अ वेरी, जैसा कि कंपनी अभी बूम बूम कर रहा है, लाइक टाटा स्टील, हिंदाल्को, जेएसडब्ल्यू, वो लोग 20 का नीचे आना मुश्किल है, तो उनके लिए 20 रख लीजिए, बट अदर्स के लिए 44 डेज। और उसका नीचे जो, हाँ, उसके साथ एक चीज आपको और देखना है, उसका 100 डेज का लाइन कैसा है। अगर 100 डेज का लाइन कर भी है ना, डोंट एंटर इनटू दैट। अगर you mentioned breaking 50 book loss. You mentioned breaking 50 book loss. That's yes, breaking 55. 55, okay. 50 में तो आप बाय करो, सेल करोगे ना, तो 55, 52 आ गया ना, तो बुक लॉस। 50 पे ले आओ, 55 पे निकल जाओ। सर अगर वो नीचे चला गया तो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट ना, कोई शेयर प्राइस कहां जाएगा किसी को क्या मालूम। कभी कभी हम लोग गलत कर लेते, क्या होता है ना, वी डोंट चेक दैट विद अदर पैरामीटर। यू अदर पैरामीटर इज 100 डेज में, 100 डेज में अगर ग्रोथ में नहीं है, इफ इट इज नॉट लाइक दिस, देन अगर दैट इज लाइक दिस, आप उसमें 50 डेज करोगे तो लॉस हो जाएगा। तो यू मस्ट कंपेयर दैट विथ 100 डेज, देन ओनली यू टेक ए पोजीशन। अगर 100 डेज डाउन ट्रेंड है, वो 50 डेज में आ गया तो वो शेयर नीचे भी जा सकता है। अच्छा, सो बी केयरफुल अबाउट। सिंपल, आपको मैं ज्यादा खुद नहीं जानता है, आई एम नॉट दिव्य रंजन साहू जो उसको सब जितना पता है वो तो हम तो उसको पूछते हैं क्या, लेकिन दे डू कॉम्प्लेक्स थिंग। आई एम टेलिंग एज ए फंडामेंटल बायर ऑफ शेयर, आप ये दो को सिंपल चीज है, कोई भी आदमी देख सकता है, और कोई भी शेयर प्लेटफॉर्म में आपको ये दोनों मिल जाएगा। मोदी सर, एक क्वेश्चन है, आपने प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में बोला था कि इसे वीकली चार्ट में देखें, पर व्हाट आई हैव वीकली इज बेटर फॉर अ ट्रेंड, आप डेली चार्ट में भी देख सकते हो। हाँ, सो मूविंग एवरेज में क्या होता है जीरोधा में, कि अगर हम वो बेसिकली कैंडल्स का एवरेज करता है, अगर हमने वीक्स में चेंज कर लेते तो 50 वीक कैंडल्स की एवरेज दिखाएगा, तो हम डे चार्ट में ही देखेंगे इसको, करेक्ट? डे चार्ट में देखिए। ठीक सर, वीक इज फॉर बने एनुअल, वीक इज समथिंग आई लाइक, आपका टाटा स्टील कहां तक जाएगा, आई थिंक दोज हु आर एक्सपर्ट हियर इन द ये, वो लोग वीकली चार्ट में ना दे कैन प्रेडिक्ट टाटा स्टील कहां तक जाएगा। वो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा, आई डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी। मैं तो सिर्फ जानता हूं फ्रॉम वेरियस नॉलेज, उसका जो मैं एनुअल रिपोर्ट पढ़ता हूं, उसका जो अदर ब्रोकरेज रिपोर्ट पढ़ता हूं, देन आई कम टू ए कंक्लूजन टाटा स्टील इज ए गुड बाय नाउ।
सो टाटा स्टील में मैं रहूंगा पॉजिटिव. सो दैट इज द वन ऑफ द क्राइटेरिया एंड दिस चार्ट इज सपोर्टिंग इट. चार्ट इज जस्ट ए सपोर्ट. पहले तो मैं चार्ट भी नहीं देखता था, कभी नहीं देखता था. मैं आई जस्ट गो बाय द फंडामेंटल. और आप चाहो तो आप भी चार्ट देखना बंद कर दो इफ यू आर श्योर दैट शेयर विल ग्रो अप. गुलाटी सर 1 डे का फ्रेमवर्क देख सकते हैं. नो इशू इन गुलाटी सर. सर हीरो होंडा में देखिए 100 डेज का भी चार्ट ब्रेक कर दिया. 100 डेज एवरेज भी ब्रेक कर दिया. हाँ 100 वो तो नेगेटिव में चलेगा. सर एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर कोई चार्ट में आप देख रहे हैं शेयर हैज गॉन डाउन बिलो 50 एंड योर 100 डेज इज आल्सो डाउन ट्रेंड, आप उसमें ना कवर कॉल सेल कर सकते हो ब्लैंक. लेकिन मैं आपको हिदायत नहीं दूंगा. आई एम ए फंडामेंटल पर्सन. मैं आपको जुआ खेलने का नहीं बताऊंगा. बट दैट इज ए प्योर नेगेटिव ट्रेंड. उसमें आप शॉर्ट कर सकते हो. दैट इज अ सिग्नल फॉर शॉर्टिंग. बिलो 50 एंड 100 इज इन डाउन टर्न. ये जो चार्ट दिखाएगा ना, सिंपल आंखों को जो दिखता है वो डाउन ट्रेंड में है. फिर अगर 50 से ऊपर आ गया तो फिर अगर आपको लॉस बुक करना पड़ेगा कॉल अगर सेल किए हो तो. लेकिन प्लीज इट इज आउट ऑफ दिस कंटेक्स्ट. This is not in option risk strategy. Don't do it. Don't do it. Sir, I have one question. IDFC वाला जो शेयर है, IDFC वाला 100 मूविंग डेज के भी नीचे चल रहा है, तो गो ऑन शॉर्टिंग द कॉल. और क्या है देखिए मैं जुआ नहीं खेलना मैं अभी बुढ़ा हो गया हूँ. मैं 64 ईयर का हो चुका हूँ. मैं अपना कैपिटल गंवाना पसंद नहीं करूंगा. मैं करूंगा नहीं. मेरे को महीना में 1-2 लाख आ जाएगा ना, मेरे लिए काफी है. और नहीं चाहिए ज्यादा. कभी कभी आ जाए 5 लाख 4 लाख आ जाता है, तकदीर है वो कभी. बट मेरा एक्सपेक्ट, मैं आपको याद होगा मैं लास्ट में एनुअल वीडियो रिव्यू में बोला था माय टारगेट इज 2% फॉर दिस ईयर. 2%, जस्ट 2% पर मंथ. सर आईडीएफसी का जैसे 50 आप सर थोड़ा मैडम पूछ रहे हैं, आपका पास आ जाऊंगा सर. जना जी सर आईडीएफसी के हमारे पास 2 लॉट्स हैं अब, जो कि आफ्टर. हाँ जी. तो उसके 55 का हमें पड़ रहा है आफ्टर लॉसेस हमने जो बुक किए हैं. तो अभी कॉल कितने की हमें सेल करनी चाहिए? आई थिंक आई कांट आंसर दैट. आप जितना भी करोगे, आप कॉल सेल करोगे ना, ज्यादा पैसा नहीं मिलता उसमें. बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता. यू डोंट गेट मच मनी. वेरी थोड़ा सा अमाउंट मिलेगा. हाँ 4-5 हजार रुपया उतना आप सेल्वेज कर सकते हो. मैम मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज वो सबसे निकल जाइए प्लीज. आप गो फॉर ओनली बेस्ट सॉन्ग. आप उसमें करते क्यों जानते हैं सर? मैं जानता हूँ, मेरा भी वही एटीट्यूड रहता है कभी कभी. चलो लंबा बड़ा लॉट है, 50 पैसा में 1 रुपया में भी हम 22,000 रुपया प्रॉफिट कर लेंगे, 20,000. बट कभी कभी उल्टा आ जाता है वो शेयर में. सर अब जब आ चुका है तो अब उसमें से निकलने का टाइम मिलेगा. आप थोड़ा सा कॉल सेल कर सकते हो ऊपर में. आपका अभी प्राइस है 46 है ना अभी? हाँ जी 45-90 ऐसे ही चल रहा था. हाँ 45-90 मैं देखता रहता हूँ. मैं आई फॉलो जो खराब फिकर था उसको भी मैं देखते रहता हूँ. क्योंकि मैं खुद 60 का कॉल सेल किया था, लेकिन जब वो 58 हुआ ना, मैं 50,000 रुपया लॉस बुक करके निकला हूं और तब से इसको टच नहीं किया हूं. सर अब हम लोग अब पहले निकलना पड़ेगा. आप 55 का वो आएगा नहीं. 55 आप 55 का 2 एक लॉट 55 का, एक 57 का, ऐसा करके आप सेल कर सकते हो. सम मनी यू कैन गेट. एंड लेट मी गिव एन आइडिया व्हाट आई डिड विद बीएचएल. मैं भी बीएचएल में ऐसा ही किया था. मेरा लॉस हुआ है, लेकिन मैं एडजस्ट किया. मैं कैसा एडजस्ट करता था मैं आपको बता देता हूँ. व्हाट आई डिड प्रैक्टिकली, व्हाट आई डिड. सो आप अपना इम्प्रोवाइजेशन लगाइए. जब जिस दिन ना रिजल्ट आया ना, वो अदानी का और भेल का एक दिन था, तो माई फोकस वेंट टू अदानी. अदानी में मेरा बड़ा स्टेक था, उसमें मैं 1,25,000 का लॉस बुक कर लिया. और ये तब 70 उस दिन बोला था कि प्रीवियस डे बोला था कि इसका रिजल्ट बढ़िया आएगा, इट विल बी 85 नेक्स्ट डे. तो मैंने क्या किया था, उसका कॉल सेल कर दिया था. पहले कॉल नहीं था, खाली मेरे पास शेयर्स थे. लेकिन वो धड़ाम से गिरा 70 तक, 71, 72. और मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि चलो अगर नीचे गिर गया ड्यू टू बैड रिजल्ट, I should get out. When there is a bad result, I always say, when there is a bad result, get out of the stock without thinking twice. आप बुक कर लीजिए लॉस और घुसिए मत उसमें जब तक रिजल्ट अच्छा नहीं होता है. तो उस क्वार्टर तो गया, इस क्वार्टर भी बर्बाद हुआ. इस क्वार्टर भी फालतू रिजल्ट दिया वो लोग, भले उनका गैप ऑफ लॉस और कम डाउन. हाँ तो अभी क्या हुआ बॉस, अभी मैंने क्या किया था, व्हाट आई डिड, जब मैं उस समय में 70 का जो कॉल था
मैं 2 कॉल सेल किया, उसमें मुझे 20,000 मिला, ठीक है मैम। तो 20,000 रुपीज का जो मिला मुझे, मैं इमीडिएटली 20,000 लॉस यहाँ बुक किया BHEL का कैश में। अच्छा। So that by month end ये जो कैश में 20,000 में लॉस बुक किया, वो मेरे को by month end that 20,000 I'm getting back because it is not going up to 70. उस समय 60, sorry उस समय मैं 80 का 80 से 70 में आया। 80 का। फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं हर एक महीना कभी 75, फिर 74, 70, अभी मैं 70 का 67 का कॉल सेल करते आ रहा हूं। उसका जो प्रीमियम मिलता है ना, उतना लॉस मैं BHEL का जो कैश शेयर में है ना, उतना लॉस उतना शेयर में स्क्वायर अप करके धीरे धीरे मेरे कैश का पोजीशन घटा रहा हूं। सो आई हैव कम डाउन फ्रॉम 10,500 शेयर्स टू नाउ 2,500 शेयर्स। यू गॉट इट मैम? या तो बाय सेलिंग सेवरल कॉल्स, वो जितना पैसा आप वहां कमाई करोगे उतना लॉस यहाँ बुक करोगे, इसका जो शेयर का जितना लॉस हुआ है। ऐसा अच्छा। करके ग्रेजुअली उसका जो पोजीशन है फर्स्ट बैंक का, क्योंकि वो ऊपर वो सब उतरने, वो कभी भाग्य में होगा तो ऊपर जाएगा। तो लेट अस नॉट गो फॉर भाग्य, लेट अस गो फॉर व्हाट इज हैपनिंग, इट मे गो अप। हाँ, जिस महीना ऊपर चला जाएगा उस महीना आप अपना जो कॉल सेल किए हो उसमें थोड़ा सा लॉस होगा, उसको काट कर फिर थोड़ा ऊंचा प्राइस में 52, 53 में लॉस टोटल सब खत्म कर दीजिए। डोंट वेट टिल 55, जो हो गया 20-25 हजार। और नमस्ते बोलिए IDFC फर्स्ट बैंक को, गो फॉर टाटा स्टील, गो फॉर हिंडाल्को, गो फॉर IDFC, सॉरी गो फॉर HDFC, गो फॉर अदर। यस सर, ठीक है, नेक्स्ट ओके सर। अरे बिल्कुल, आप ऐसा करके थोड़ा पैसा आप कमा सकते हो। एवरी मंथ यू हैव टू डू इट, एवरी मंथ यू हैव टू डू सेल कॉल। आप 2-3 कॉल सेल करोगे, आपको ज्यादा से ज्यादा 4 लाख 3 लाख रुपया लगेगा, आपका मार्जिन 3 लाख रुपया का मार्जिन ब्लॉक होगा, ठीक है ना। तो 3 लाख में आपको कम से कम अगर 15-20 हजार मिलता है ना, स्टार्ट बुकिंग लॉस इन द कैश। Sir, good afternoon, sir. Sir, I have got one question. I have got HDFC कल 1,500 पे लिया था स्ट्राइक प्राइस, HDFC बैंक। सुन रहे हैं साहब? हाँ, बोलिए। अभी दैट इट इज गॉन अप, इट इज नाउ। आपका वीडियो चालू कीजिए ना, वीडियो चालू कीजिए। किया है सर। क्या नाम है आपका? 1050 मैं रामकृष्ण सर। अब आया वीडियो यार। 1050 का कॉल। नो सर, HDFC 1,500 कॉल। Now it is 526. Then I rolled over 2 other. I have got 3 lots. I have rolled over to September for 1,600 one call, and another call for 1,700. Overall, I am having a 12,900 loss. What should I do now? Sir, option wheel strategy, when I was presenting my slides, nowhere I said about adjustment, is not it, sir? Yeah. I've never spoken about adjustment. Correct. There is nothing called an adjustment. Sir, never sell a call very near to your spot price. So as far as my knowledge goes, IDFC was about 1,450 last month, around 1,450. Yeah. So by selling 1,500 very near, because the VIX was low, probably you wanted more premium, that's why you came very near. No, at that time premium was only 10 rupees premium. हाँ, वो इसलिए उसमें मत जाइए ना फिर। सर देखिए, बैंक इज सर, वहाँ प्रीमियम विल बी लो सर, प्रीमियम विल बी लो. सो what you can say, now your average call probably 1,650 for 2 lots. I got 3 lots actually. What is the average price? Average price is 14. Average strike price. Average strike price is 16,600. 1,600 too. Now it is 1,550. 1,526. Should I wait till expiry? No, I don't think it will be 1,600 this month. I don't think. I think by waiting you can make money. 1,600 is September का है. 1,600, 1,700, 70. But August का 1,500 पे एक है. It is showing red. Should I wait for till the expiry or shall I come out from this? Sir, I always suggest to wait till expiry, unless you have got some other different. Because you should wait till that, and then only. But now there is a question. Some people say whether they will leave it to broker or they should do it yourself. ये सवाल बार-बार आते रहता है.
आपका मान लीजिए आई एम इन रिलेशन टू योर क्वेश्चन एंड आल्सो दोज हु आर सेलिंग पुट और कॉल, इट बिकम्स इन द मनी, please don't leave it to your broker charge very much. I've got document with me. Zerodha charge for buying, मान लीजिए एग्जाम्पल, आपको 1400 का आपने पुट सेल किया टाटा स्टील का, इट बिकम 1380, देन यू से ओके लीव इट, 1380 का वो मेरा जो है पुट है वो एडजस्ट हो जाएगा, अपने आप ब्रोकर कर लेगा और शेयर खरीद लेगा 1380 में। हाँ वो कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा वो, लेकिन दे चार्ज वेरी हाई, 2500 rupees is the service charge they say, they don't say it brokerage. लेकिन if you do it yourself, you buy 850 or less share, you pay zero brokerage on that and you square off in the money put for 20 rupees. So your cost of brokerage is only 20 rupees. But if you are doing through them automatic way, you pay 2500 rupees to your broker. So don't leave this thing to, all the square up must be done by Wednesday or maximum before 12 noon of Thursday. उससे ज्यादा आप इतना होप मत रखिए कि अगला 2 घंटा 3 घंटा में आपका तकदीर चेंज हो जाएगा। प्लीज बुक द लॉस और बुक द प्रॉफिट, वॉट एवर मे बी द कॉस्ट, डोंट लीव इट टू योर ब्रोकर। और जो मुझे पूछ रहे थे एचडीएफसी के बारे में, आप उसमें 1526 है, क्योंकि द मार्केट हैज गॉन अप वेरी फास्ट इन द लास्ट 3 days. So the moment you see little bit of price down, that time you can come out, because there are only 7 trading days are there, because Thursday is a Muharram के लिए bank it will be closed. So there is hardly 3 days, 4 days and 4 days, 8 days, 8 trading days are there. So within 8 trading days, जो आपको थोड़ा लग रहा है थोड़ा वेट कर लीजिए 2-3 दिन, अदरवाइज बुक लॉस उसमें 1500 में। And don't, sir, another request to all of you, some people for higher premium, they sell October 3-month old. So please remember, that is why I never do it, because you see the premium is high, but if the share price goes up, it will become very high. So don't go for, maximum is 45 days. अदरवाइज दुनिया में इतने लोग करते हैं, क्या वो लोग 70 days 80 days का पहले नहीं करेंगे? बिकॉज अमेरिकन मार्केट इज सो लिक्विड, दे कैन डू इट फॉर 3 months 4 months. लेकिन जैसा कि हम लोग निफ्टी में, हम लोग जो पुट खरीदते हैं दिसंबर का 1 साल पहले का, वहां लिक्विडिटी है, बट दैट डजंट मीन दैट आपको प्रीमियम ज्यादा मिलेगा बोल के बहुत लंबा का मैं 3rd सीरीज का मैं पुट या कॉल सेल करूंगा. It is not advisable. It is from my experience. I'm telling you. Rest is your choice. Then I am only doing present month and next month, not more than that. Maximum next month, and that too. But next month, sir, it is still today is 15th August. You must have run it few days ago. It is beyond 45 days. You have done it. It is not recommended. Okay. So wait. So what happens? The share price becomes 1600. August 1600, you compare with the September 1600, suppose it goes to 1580, it will be 3 rupees here in HDFC's August, and that will be much more. That will be 25 rupees or 22 rupees. Oh. So that happens both way. It is not beneficial just because the premium is more in September. So be careful about it. Please be careful. And इसका सल्टा दीजिए जल्दी. जो that this month put. Wait for a day or 2, then बाई वेडनेसडे उसको क्लोज कर दीजिए और ज्यादा मिलेगा नहीं. आई बिलीव मार्केट शुड गो डाउन. कितना ऊपर जाएगा? इतना थोड़ी होता है, सिंगल लाइन थोड़ी जाता है. हेलो मोहंती सर, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. I am Deepak Pisal, retired from HPCL. I never do the options, only I do the positional. I buy 100 shares HPCL, and whenever it is 120 I sell it. But can you tell me that about option sell call means what and put means what? Because I have some little bit fund, so I have to go jump to option market. So can you guide me on this option market? It is a option call and put. Those are very okay. Wait, then what is meant by call and what is by put? That you can tell me. Okay. So, Deepak ji, you can attend our earlier webinar. At the earlier webinar which we posted on the YouTube, there I have explained in detail ki what is call, what is put, what is short call, what is short put, everything you explained there. So just watch any of the YouTube, because this is a long subject. This is not a small subject. It's a very long subject. It's a very long subject. Deepak ji,
आप एक काम कीजिए, आप YouTube में जाकर ना सिंपली सर्च कीजिए व्हाट इज कॉल, व्हाट इज पुट, बस इतना ही लिखिए. गो टू YouTube, राइट व्हाट इज कॉल, व्हाट इज पुट, यू विल गेट फैंटास्टिक वीडियोस ऑन इट. Thank you. एंड उसके बाद इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, गिव मी अ कॉल और राइट टू मी, आई विल आंसर यू सेपरेटली. लेट अस, इट विल टेक वेरी लॉन्ग. Okay. And it is good that you are interested to learn it. It is never a period where you stop learning. You must learn it. You must learn it. I welcome it. Thank you very There much. is a Thank you. question came. It is now a question has come in the chat. It is about what is protective put. Okay. What is protective put? मैं last time भी बोला था इसी सेशन में, लेकिन फिर बोल देता हूँ. Protective put something one can buy. अभी मार्केट 16,000 है, तो one lot of Nifty is the lot is 50. So a protective put, how much protection it can give? 16,000 multiplied by 50, 8 lakhs rupees. So what one can do to give protection to his or her portfolio, you should buy December 2021, not this month. And even you can buy protective for 2022 and 2023. Those are all available with most of the brokers, but the maximum liquidity will be for 21. अभी 16,000 का आपको 300 रुपया का नीचे मिल जाएगा. आप 16,500 का 500, 450 का बीच में मिल जाएगा. You buy that put. If market crashes, you make very big profit. And यहाँ जो loss होगा, about 50-60% you can recover from those puts. If your portfolio is say 80 lakhs and up 10 lot protective put December 2015-21 का आप 16,000 में आप buy किए हो, if it goes down to 14,000 and there is a loss, big loss in your put options, not call options, put options, in such case there you are going to get 7.5 lakh rupees, क्योंकि sorry more than 8 lakh rupees, because आप जो 250 रुपया में खरीदे होगा ना, उसका वैल्यू वो 2000 हो गया होगा बाय दिसंबर. अगर दिसंबर में तक वो प्राइस आ जाता है आपका 14,000, और जिस भी मंथ होता है, so you get lot of money from your buy position, and those are called protective puts. And protective puts का ऊपर में भी कई सारे वीडियो YouTube में अवेलेबल है. ज्यादा जानने के लिए आप उनका देखिए. Otherwise in my channel also protective put has been explained. You can see the protective put. Hi sir. Hi sir. Can you please cover on the Maruti question? Actually, I started doing the strangle at the start of the expiry, and I started with 6,400 put and 7,600 call. And then as the expiry reached near, I just started squeezing the band a little bit. So I'm already in 20K profit somewhere in the strangles. But currently it's around cost to cost. The 6,800 put and 7,300 call. Both have been shorted 3 lots. So should I wait or? Same share. Maruti, yes. Right. Maruti में 3 calls and 3 puts. 3 puts, 6,800 puts and 7,300 calls. Yeah, got it. My suggestion will be never put all your eggs in one single basket. You should have done 3 different shares. So Maruti, as I told you, it is suffering now. Yes. So that is the only way out is that when you sold 3 puts and 3 calls, I believe you have got 21 lakhs with you. Okay. If you do not have 21 lakhs, you have done a blunder. ठीक है? गलती सबसे होता है. I have done much more than this. What you have told, eh? The bigger blunder master is here. Okay. So if you don't have, then you are speculating, and speculation resulted in loss always. 1-2 महीना 5 महीना कमा लोगे ना, फिर एक झटका में आपका जितना 10 महीना का प्रॉफिट है ना निकल जाएगा एक झटका में. So only thing what you can do, if you have got money, I would have said wait, let it come to 6,800. You buy out of 300 share 100 shares and sell 300 calls. I told you that 30% share you buy. Okay, got it. 300 share है 3 lot का 300 है, तो आपका जो कॉल है वो तो प्रॉफिट इस महीना दे देगा. उसका वैल्यू रिड्यूस करके you calculate mathematically in Excel sheet what is your cost for this Maruti share. Then you start selling. You start selling. So that is the way out for you. Got it, boss? Got it. You're a young man,
सर आप जल्दी कर लोगे, चिंता मत करो, हमारे लिए टाइम कम है, आपके लिए बहुत टाइम है करने के लिए। हमको कोई सिखाने वाला भी नहीं था मोहंती जी। अरे सर मेरे को भी कोई सिखाने वाले नहीं था। व्हाट आई एम डूइंग इज रेजियन। मेरे को गुस्सा लगा इसीलिए मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। अरे तुम लोग बड़े बड़े लोग खाली पैसा कमाओगे, हम लोग जैसे मिडिल क्लास पैसा नहीं कमाएंगे, क्या बात करते हो? चलो फ्री में बात करो सब, एवरीथिंग शुड बी फ्री। Thank you. Sir, namaste sir. मेरे पास एक question है. I have a question, and somebody has also asked that same question in the chat. So can we do this OWS and Nifty Bs or Bank Bs like any index-based ETF? What would be the pros and cons when we compare it to doing it in stock? That is little bit safer actually, but I never do it. I never do. You know why? Why I don't do it? Because the return is very low. Return is hardly not even 2%. But sir, safety. Do you think नहीं, safety Nifty is Bs more के there because नहीं, कृष्ण जी, indexes go down and? सर देखिए क्या होता है, फर्स्ट यू ना डोंट बाय द निफ्टी बीस, डोंट बाय इनिशियली, फर्स्ट यू सेल द स्ट्राइक प्राइस, लोअर स्ट्राइक प्राइस. If the share price is not coming, you collect your premium every week. That you can do it weekly, remember. So if it is not coming now, the market has gone up from 15,800 to 16,500. So a lot of profit people must have made it. So आप उसको क्या करना है, पुट को सेल करके रखो. Right. Now if the price comes to 1,500, 800 or 16,200, whatever your price, so what you can do, that time you buy Nifty BIS or Bank Nifty BIS. And Bank Nifty BIS and Nifty is more safer because उसमें fluctuation कम होता है, so you go for that. But you can always do it with a Bank Nifty BIS or Nifty BIS, OWS उसमें कर सकते हो. And but why I don't do it? Because you don't get much profit. मैं पेपर ट्रेड कर चुका हूँ. I don't get much profit. So that's हाँ why. सर, अभी पिछले साल तो प्रीमियम्स बहुत थे, लेकिन इस साल तो विक्स जब से कम हुआ, Yeah, that is the reason you don't get much money. आप देखो 200-300 पॉइंट ऊपर करोगे ना, hardly any money you get, boss. Hardly any money you get. कम से कम जो हाई आईबी वाले जैसे टाटा वगैरह है, हिंदाल्को, JSW Steel, they are growing, trending sector and growing stock. वहां you get lot of money. You get, माने आपको दिखता है 8,000, 10,000, 20,000 आप कलेक्ट करते हो. Yes sir. So that way, that is the reason why I don't do it. Otherwise, nothing wrong in that. Nothing wrong in that. Cool, thank you. I have one question. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So. हाँ माइती साहब बोलिए. रंजीत जी, मेरा एक क्वेश्चन है टू हेजिंग. Okay, that cash record, that protective put, whether we can purchase on weekly basis, and that to the premium, if somebody has suggested the premium will be less, much less, at the same amount, same strike price on the weekly basis. Now, if you purchase your protective put in December 21, premium maybe 360 or 400, but if you sell protective put weekly basis, it will be hardly 1 rupees, 2 rupees at the same strike price. प्रोटेक्टिव फुट बाई करना है ना सर, every week, every Friday. नहीं बाई करना है, सेल करना है. बाई करना है. हाँ, बाई करना है तो आप दिसंबर का बाई करेंगे, सेल करेंगे. कब दिसंबर का सेल करेंगे या बाई करेंगे? आप वो बढ़िया चीज, मैं समझ गया था. सुजीत जी, मैं अभी एक तो ट्रायल किया था, और मेरा दोस्त एक है अपना दिव्य रंजन साहब, आपके ग्रुप में है, तो मैंने एक मैं उसका टेस्ट किया. तो आई हैव बॉट 10 लॉट्स, ओके, 16,000 10 लॉट्स फॉर दिसंबर. सो मैं सोचा व्हाई नॉट टू बाय एवरी वीक 15,500 इफ नॉट वीकली. बट उसमें क्या हुआ जानते हैं, जैसा कि मैं ऑप्स्ट्रा में चेक किया ना, इफ आई एम गोइंग बियॉन्ड 5 लॉट अगेंस्ट 10 लॉट्स ऑफ सेल, आई एम इनकरिंग लॉस. आप ऑप्स्ट्रा में चेक कर लीजिए, उसमें ज्यादा फायदा नहीं होगा. I tried what you are telling. I tried it actually. Don't do it. और बर्बाद हो जाएगा. और आपका जो इंटरेस्ट लेकर आपने बाय किया है पुट, उसका माने कोई फायदा ही नहीं रहेगा. एक्चुअली कोई फायदा नहीं रहेगा उसमें. समझ गया. Okay. I actually did it. I'm not telling you theory. Actually,
इट्स एक्चुअल। नहीं समझ में नहीं, आपने किया क्या पहले ये बताओ यार, अभी हमको समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं आप। कोठारी साहब आप क्यों पूछ रहे हैं? आप नहीं पूछिए, बाकी लोग। अरे आप इसलिए कि औरों को भी समझ में नहीं आया, आप बोलिए अच्छे से बताइए। अच्छा मैं बताता हूँ, हाँ, आप पूरा बोलिए। ऑब्स्ट्रा निकाल लीजिए। आप क्या करना है उसमें, पहले तो आप सेल बाय किया हो ना, आप 10 लॉट्स बाय किया है, आप उसका बना दीजिए, उसका आ जाएगा, उसका ग्राफ आ जाएगा 10 लॉट्स का, ठीक है ना? हाँ, तो उसका मैक्सिमम लॉस जो है आ जाएगा, मैं 3 लाख रुपया इज द मैक्सिमम लॉस। प्रॉफिट तो अनलिमिटेड है, ठीक है ना? तो 3 लाख का लॉस हो गया। तो मैंने क्या क्या चेक किया, जो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर का मैं पहले चेक किया विद 10 लॉट्स बाय। जब उस समय मार्केट था 15,800 और 900, मैं 300 पॉइंट नीचे 15,500 का, बहुत काफी नजदीक था। 300 पॉइंट इन 15,000 इज ए वेरी स्मॉल परसेंटेज, तो 2% ओनली। तो उसको मैं देखा, सर लॉस दिखा रहा है। इफ मार्केट गोज डाउन फर्दर बिलो 1,000 पॉइंट, ऑस्ट्रा में लॉस दिखा रहा है मेरे को। जो बाई किया, सेल किया आपने? बाई किया, सेल किया? सेल किया बाई? मैं करंट मंथ का सेल किया। हाँ वही ना, करंट मंथ का सेल कर रहे हैं, लॉन्ग में आपने बाई किया हुआ है। हाँ, मैं लॉन्ग में बाई किया 16,000 का। मैं 15,500 का मैं जब सेल किया, 10 लॉट में लॉस हुआ। मैं जब 4 लॉट उसको किया, एक लॉट घटाते गया, तो फिर वो चार्ट ऊपर गया, तो मेरे को थोड़ा सा फायदा हुआ। 4 लॉट का फायदा, और 4 लॉट में मुझे कितना मिला? 3-4 हजार रुपया। मैं बोला मेरे को नहीं चाहिए 3-4 हजार रुपया, लेकिन मेरा जो टोटल 3 लाख रुपया जाने दीजिए। मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। यू हैव नॉट अंडरस्टूड माय क्वेश्चन। आई वांट टू बाय प्रोटेक्टिव पुट एवरी वीक ऑफ द सेम दैट विल बी टोटल वेस्ट ऑफ मनी। टोटल वेस्ट बेकार है, टोटल वेस्ट ऑफ मनी। बट दैट प्रीमियम विल बी मच लेस, 1 रुपी 2 रुपी। कैसा 16,000 का निफ्टी? अभी निफ्टी का आप पुट खरीद लो, अब खरीद लो 1,000 पॉइंट बिलो। तो ये आपको मैं एक चीज बताऊं, सिंपल चीज में आपको पता चल जाएगा व्हाई आई एम टेकिंग यू विल बी लूजिंग मोर देन दिसंबर। आप दिसंबर 2021, दिसंबर 2022 का प्राइस देख लीजिए। इफ दिसंबर 2021 इज 500, 22 इज नॉट 1,000 नहीं, वो 800 में मिलता है। जितना दूर जाओगे उतना सस्ता में मिलता है। सो बाय डूइंग एवरी वीक या एवरी मंथ यू आर पेइंग मोर। नहीं तो करंट मंथ का खरीद रहे हैं, करंट मंथ का खरीदेंगे ऐसा बोल। नहीं, उसमें भी सर लॉस होगा ना। आप सुने, आप करंट मंथ का प्राइस को मल्टीप्लाइड बाय 5 मंथ्स कीजिए, दैट प्राइस इज चीपर देन, वो दिसंबर से ज्यादा महंगा होगा। वो तो महंगा होगा। तो फिर क्या फायदा हुआ? तो मैं एक बार दिसंबर में क्यों खरीद कर बैठ जाओ, काम खत्म, 3 लाख खत्म, गया मेरा 3 लाख। हर महीना खरीदेंगे उसमें ज्यादा लॉस होगा, उसमें ज्यादा लॉस होगा। मैं देखा हूँ सर, इसको बिना टेस्ट किए मैं थोड़ी किया हूँ। नहीं तो लोग सारे दुनिया में क्यों बोलते हैं दिसंबर का खरीदो। तो बाकी जगह क्या है ना सर, वर्ल्ड वाइड ना जितने शेयर है ना, वो दिसंबर का भी मिलते हैं। हमारा ही कंट्री है जहां सिर्फ इंडेक्स मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। वो लोग का तो आप सब में कर सकते हो। वो लोग क्या करते हैं, उसका फायदा लेते हैं। लंबा वाला खरीदो और उसका कॉल एवरी वीक गो ऑन सेलिंग, उसमें ज्यादा पैसा मिलता है उसमें। हमारे यहाँ कंट्री में नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है हमारा यहाँ। करेक्ट, गॉट इट मैती साहब? हाँ, got it. Don't do that, huh? Okay. Sir, I have a question. Okay. So you mentioned 30 to 45 days is the best time to start the OWS, right? The window. So today, August 15. So we can try to start for September from now on. So I have, for example, I have around 50 lakhs with me, and I have selected around 20 stocks in my watch list. Okay, so in that I would like to go 10 OWS because I want to preserve the cash for buying. So from the next day, for example, tomorrow, should I go all the 10 stocks and buy whatever? You will not get it. Or tomorrow you will not get 10 stock. Tomorrow you will not get 10 stock. You will only get 5. No, okay, I'm just giving an example. You will get ITC. You will get Reliance. You will get Tata. Tata still be thoda mushkil hai. Tata still is also not that liquid. So you will hardly get 4-5 shares. So by the time 20th August हो जाएगा ना, 21st August, then you will get some 8-10. Then 30th तक आपको सब कुछ मिल जाएंगे.
even very book. So if your liquidity is not there ना, you're unnecessarily losing on premium. Liquidity रहेगा ना, then आपका premium loss नहीं होगा. Liquidity खराब है ना, you will be paying less. आप eager पे ले लो, मेरे पास पैसा है. But at the same time, if you have got 50 lakhs, as I told, keep 30 lakhs in your bank. Just do it on 20 lakhs में जो करना है कीजिए. And don't go for 50 lakhs. I don't recommend more than 10 options. Okay. Thank you, sir. Shekhar, any question? Somebody wrote 1 crore में कितना होना चाहिए? हाँ, वो 12 लिखा था. 12 से थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हो. 1 crore capital में it can be 15 also, no problem. नहीं sir, नहीं. I'm just listening. Okay. Yeah, go ahead. Any other question or? Acha, somebody asked what is roll up and what is roll down. There's one question from somebody. अच्छा. What is roll up and what is roll down? मैं समझा देता हूँ. कभी-कभी मुझे लगता है कि मेरा जो प्राइस है ना, जो जैसा कि अभी साहब ने बताया ना, जो उन्होंने HDFC का 1600 कर दिया, पहले 1500, एक्चुअली दैट्स अ रोल अप. तो क्या होता है ना, मैं अपना जो एग्जिस्टिंग पोजीशन, मैं तो हर एक शेयर में एक करता हूँ. आई डोंट बाय 2 लॉट. एक ही कंपनी का, एक ही शेयर का, एक ही ये का मैं 2 नहीं खरीदता हूँ. कभी होगा तो नेक्स्ट मंथ करूंगा, इसमें एवरेज होगा. इस महीना में मैं रिस्क नहीं लेता हूँ. तो मेरा टाटा स्टील का सर 1560 का मेरा कॉल सेल था. अभी थोड़े उसको मैं 1600 कर दिया. You know why? Ask me why. The question is that Tata Steel, I want to keep it for very long term. Tata Steel is very, I want to keep it till 1800. लेकिन तो इसीलिए मैं जानता हूं आज इस महीना नहीं जाएगा. It will take few months or even 7, 8, 9, 10 months. So what I did, the way it went up, and probably tomorrow it will still further go up because of the excellent result. So I decided, तो इस महीना मैं जो 1560 का कॉल सेल किया था, उसमें मैं 1000 रुपया का करीब लॉस हुआ मेरे को. आई टुक इट टू 1600 होने से क्या होगा, मेरे पास ऑलरेडी 650 शेयर्स है एट 1340 ऑलरेडी है पहले से. तो 30 40 जो भी है, तो 1600 में मेरे को 160 रुपया का बेनिफिट मिल जाएगा 650 शेयर. सो 160 into 65, 650 is a good money, very good money. I think it will be more than 1.5 lakhs, around 2 lakhs करीब आ जाएगा. मैं बाकी 200 I will be buying when it reaches 1590. Because मेरे पास भी कैपिटल का रेस्ट्रेंट है. मेरे पास अनलिमिटेड कैश नहीं है कि मैं बिकॉज अभी से मैं सब खरीद लूंगा, क्योंकि आई हैव गॉट JSW विथ मी, आई हैव गॉट हिंडाल्को विथ मी. द टॉप 3 जो है ना मेरे पास. हाँ, अब मेरे पास पैसा नहीं था. वेदांता में भी मैं शेयर खरीदा हूं जस्ट 500. मेरे उसको लॉट करने के लिए मेरे पास ना पैसा है, कुछ नहीं है. तो आई कांट डू एनीथिंग. वो 500 खरीद कर रख लिया हूं लॉन्ग टर्म. और सिमिलरली रोल डाउन कब करोगे? रोल डाउन तभी करना है जब आपको किसी कारणवश पता चल गया, ड्यू टू सम रीजन, बैड रिजल्ट और समथिंग, दिस प्राइस इज गोइंग डाउन, इट विल गो डाउन वेरी फास्ट और जल्दी जाने वाला है. इन दैट केस इट इज जस्ट योर इंट्यूशन, योर नॉलेज, योर एक्सपीरियंस. तो बोलते नहीं, इसमें मेरे को ज्यादा घाटा होगा, मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूं. कुछ लोग मार्टिंगेल करते हैं अप डाउन में जब होता है. मैं वो एडजस्टमेंट करता नहीं हूं, तो मैं ऐसा करता हूं, रोल ऑफ करता हूं या रोल डाउन करता हूं, क्योंकि उसमें मेरे को लगता है कि वो लॉस विल बी लिटिल लेसर लॉस. ज्यादा से ज्यादा 2000, 1000, और कभी कभी प्रॉफिट से भी निकलता हूं. जब रोल ऑफ करता हूं या रोल डाउन करता हूं, मेरे को लगता है प्राइस नीचे जाएगा, आई गो आउट विथ अ प्रॉफिट कभी कभी ऑल्सो. बट द अमाउंट इज वेरी लेस. 2000 लॉस तो 2000 प्रॉफिट उसी में रहता है, नॉट मोर देन दैट. When I roll up or roll down. Monty ji, मेरा एक क्वेश्चन है. Now let me ask one question. What is your experience with the future with the call selling and future with put selling? हाँ, वो सर मैं तो फ्यूचर में सेलिंग नहीं करूंगा. फ्यूचर हमेशा बाय करता हूँ. फ्यूचर बाय विद कॉल सेलिंग का क्या? हाँ सर, उसमें किया कुछ महीना किया सर. इन द मंथ ऑफ नवंबर आई मेड 6 लाख रुपीज इन वन सिंगल मंथ. 20% रिटर्न इन दैट मंथ, 20% रिटर्न. और मेरे को झोल लग गया, अरे साला आई एम ए ब्रिलियंट स्टॉक प्लेयर. एंड सर अप्रैल में मेरे को 6 लाख का चूना लगा.
अच्छा This future buy and call sell. हाँ वही बोल रहे हैं ना. Yeah, no, but you will do it in a bullish trend. Yeah, bullish trend mein, if you are sure that market will go up and you have got the problem of capital, then you can do it. But be ready for a jhatka, the way I got it. Okay? As long as you are ready for that, then future is really good. It will give you very good money. बहुत अच्छा मनी पैसा मिलेगा उसमें. So similarly, लेकिन आप फ्यूचर किसमें करोगे? मैं 2 शेयर बताऊंगा. 2 शेयर आप फ्यूचर कर सकते हो, ज्यादा रिस्क नहीं है उसमें. एक है आईटीसी, एक है आईटीसी, दूसरा है एलएनटी. अच्छा, ये दोनों में कीजिए आप. अभी 1560 आ गया. जैसा एलएनटी नीचे आता है ना, अराउंड 1610 और 1600, उसमें ज्यादा लॉस का ज्यादा चांस नहीं है. वोलेटाइल नहीं है ज्यादा, तो ज्यादा वोलेटाइल नहीं है. Tab, similarly, in a bearish trend, can we do for future sell and sell put? Sir, I have never done in my life. How can I advise you? जो मैं नहीं किया, आपको कैसे बता सकता हूँ? अच्छा सर, one doubt, normally beginners get in equity is that, the entry point. Because the market has been, fortunately or unfortunately, 80% of the days the market is bullish only. And entering, particularly IT stocks, because the long-term investors, would look IT sector. But it is up. So where do we enter, sir? Can we enter at this level? Sir, देखिए, TCS जो है ना अभी 3,400 हो गया कल. Yeah. ठीक है ना? But sir, let me tell you. Within this month, you will do someday. You will see it is 3,200 to 250. That is the time you will listen. You have to wait. Okay. It is a game of timing also. Okay. That is why I told you about the chart. Otherwise, I would not have. Yeah, you clearly said about that support 20 simple moving average. TCS गया तो नहीं है तो नहीं है TCS. नहीं लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? नहीं है, कुछ तो है ना. अरे सर, एक सेक्टर में छोड़ दिया, एक बहुत अच्छा सेक्टर छोड़ दिया. आप लोग को अभी बता देता हूँ. While I was discussing, that is specialty chemical. Okay. Deepak Nitrate. I think every month I make money with the Deepak Nitrate and Navin Fluoride. अच्छा, नवीन में मैं हर एक महीना पैसा कमाता हूँ. और बाकी जो कैश शेयर खरीदना चाहता हूँ, जो डोंट वांट टू डू FNO, फॉर देम लक्ष्मी ऑर्गेनिक एंड सुमिटोमो, ये सब बहुत बढ़िया शेयर्स है. लॉन्ग टर्म, एक साल में आपको 20-25% देंगे. करना है, खरीदना है, बेच, भूल जाना है. So please यूज, मैंने थोड़ा टाइमिंग कीजिए. शेयर बेचने के लिए टाइमिंग करने से अच्छा है. आप नहीं भी कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? 1460 में भी आप सेल कर सकते हो, क्योंकि इसको विल गो अप. बट व्हाई? इसको विल वन डे इट हैज टू कम डाउन टू 1350 अगेन, 1330 अगेन. इट विल कम. वेट, 8-10 दिन वेट कीजिए. कौन सा दुनिया निकल जा रहा है? बट दैट यू विल मेक मोर प्रॉफिट. थोड़ा टाइमिंग कीजिए. टाइमिंग जरूरी है OWS में. सर, एनी क्वेश्चन चार्ट में आया क्या ठाकुर कोठारी जी? कैन यू सेल प्रोटेक्ट? तो बता दिया. नहीं, एक क्वेश्चन ये आया कि कैन वी डू कवर्ड कॉल, क्या बोलते हैं ये, कवर निफ्टी के अंदर विद कवर कॉल का होता है ना, जो प्रोटेक्टिव पुट है, जो प्रोटेक्टिव कॉल भी कर सकते हैं क्या? प्रोटेक्टिव कॉल. सर, प्रोटेक्टिव कॉल वाल तो मैं सुना भी नहीं. मैं कैसा बोल सकता हूँ? दैट इज ओनली प्रोटेक्टिव पुट, प्रोटेक्शन ओनली. सर, एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज ए बायर. पैसा कमाने के लिए कॉल तब करते हैं वो शेयर जब नीचे गिर रहा है तो आपने कॉल खरीद लिया. सर, वो जो शंकर है ना अपना, जो दैट द बियर, द ग्रेट बियर, वो भी बता सकता है कि आप, हम लोग तो सब बायर है सर. हम लोग तो इन्वेस्टर है सर. हम लोग प्रोटेक्टिव कॉल क्यों करेंगे? प्रोटेक्टिव पुट हमारे लिए बढ़िया है. सबके लिए प्रोटेक्टिव कॉल तो वही लोग करेंगे जो बहुत बहुत बुलिश है, एक्सट्रीमली बुलिश. ये 20,000 रुपये हो जाएगा 16,000 से. सर, इतना अगर जानकारी होता तो मैं आज क्लास ले लेता, मैं पैसा कमाता और सब वेबिनार करता 50,000 रुपया का 2 दिन का. जो चेन्नई वाले लोग कर रहे हैं. सुंदर PR, सुंदर. नो कमेंट टू एनीवन सर, नो कमेंट टू. उनका अपना, दे आर मच नॉलेजेबल पीपल. दे आर वेरी नॉलेजेबल पीपल, अनलाइक मी. I have got limited knowledge. I am a small investor only.
मोदी सर, आप बोल रहे हैं कि वेट करना चाहिए, लेकिन कोई स्टॉक बहुत ऊपर है तो शॉर्ट भी कर सकते हैं क्या? सर नॉट इन द OWS, वैसा कर सकते हो, जैसे आपको मैं बताया, फ्यूचर बट आपको बताया एनीथिंग दैट गोज बिलो 50 days मूविंग एवरेज एंड 100 days इज शोइंग अ नेगेटिव ट्रेंड मींस उल्टा गोइंग डाउन, 100 days एंड 200 days आल्सो गोइंग डाउन, वहां आप शॉर्ट कर सकते हो। एंड प्लीज रिमेंबर दिस इज नथिंग टू डू विद OWS, डिस्क्लेमर। सर आपने आईटीसी और इसका एग्जांपल दिया कि ये ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती है, लेकिन अगर ये करेक्ट होते हैं और हम उसमें फ्यूचर ले लें, वेट करना पड़ता है, तो एक्सपायरी तक वो उसमें कुछ मूवमेंट ही नहीं आती है। सर आपको फ्यूचर में नहीं कमाना है, आपको कमाना है कॉल से कमाना है। तो सर इसमें आप हाँ एक चीज कहना भूल गया, जब आप फ्यूचर लेते हो ना तो आपका कॉल शुड बी वेरी नियर। आप अगर शेयर खरीदे हो 3200 शेयर आईटीसी का, 1/3 शेयर 1000 खरीदे हो, योर कॉल शुड नॉट बी लेस देन 225 230। लेकिन इफ इट इज अ फ्यूचर यू कैन सेल द कॉल एट 5 रुपीज प्रीमियम नियर 215। आपको तो 5 रुपया 10 रुपया का प्रॉफिट महीना में मिल जाएगा। एंड इफ इट इज गोइंग डाउन और स्टेइंग स्टैग्नेंट, यू गेट 15,000 rupees in one single month. So whenever you are playing game with the future, your call sell should be can be nearer to your buying price. वहां ज्यादा लंबा करने का 5-10% जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्विक बॉक्स चाहिए। एंड यू नेवर नो, फ्यूचर नीचे भी जा सकता है। अगर नीचे गया कम से कम दैट विल गिव यू प्रोटेक्शन। अभी मैं थोड़े दिन पहले इंडिगो का, मैं उसको अपना ट्रेड में दिया नहीं, मैं 1675 का फ्यूचर खरीदा एक दिन 2 दिन पहले, थर्सडे को 1675 का मैं इंडिगो का, बिकॉज उसको बोल दिया ना, जो गवर्नमेंट बोल दिया 50% से यू कैन गो अप टू 62% और 70% यू कैन सेल द शेयर, तो दैट इज अ पॉजिटिव न्यूज फॉर एयरलाइंस। तो मैं 1675 का फ्यूचर खरीदा एंड वेरी नियर 1700 का कॉल में सेल किया, 40 रुपीज प्रीमियम। उसका लॉट है 500, 20,000 रुपीज प्रीमियम बॉस, 20,000। बट क्या किया नेक्स्ट डे, ये जो 1675 था वो इनिशियली 1709-10 को चला गया। मैं 1709 में आई क्लोज माई ट्रेड एट 15,000 प्रॉफिट, और मेरा जो कॉल सेल हुआ था 7 रुपया का ना कुछ प्रीमियम था, उसका जो भी था वो 11 रुपया में, उसमें मेरे को हुआ 8,000 का, 10,000 का लॉस। मैं आई गॉट इट फॉर सम 4-5,000 रुपीज प्रॉफिट, आई मेड 5,000। एंड उसके बाद from 1709 it again came down to 1670, 1675. It closed 1675. And there was a सब जितने थे एनालिस्ट सब बोलते थे 1720 जाएगा। So when you do with future, आप शॉर्ट टर्म काम कीजिए, because don't go by what GTV business tells or CNBC. आपको अपना पैसा बचाना है। आपको 5,000 रुपया अगर एक दिन में मिल गया ना एक फ्यूचर में, अरे नमस्ते बोलो ना। I don't want 50,000 1 lakh in future. 5,000 6,000 8,000 7,000 बहुत बढ़िया अमाउंट है, और यू सेल द कॉल नियर। अगर ऊपर जाता तो ठीक है, अगर और फंस गए तो कम से कम 20,000 तो मिलेगा महीना में, अगर फंस गए। सर मैं प्रोटेक्टिव पुट को ऊपर कुछ बोलना चाहता हूँ। दिव्या जी, आप कहाँ थे इतनी देर से? सर मैं यूट्यूब में था। यूट्यूब सर बोलिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर। ये प्रोटेक्टिव कॉल इसीलिए आपका वीडियो चालू कीजिए ना, वीडियो चालू करो, वीडियो पहले वीडियो चालू करो। हाँ करो ना। अरे तुमको अभी देखेंगे, फिर शाम को 6 बजे देखेंगे, करो ना, तुम चिंता करते हो। हाँ आप बोलिए साहू जी। प्रोटेक्टिव पुट इसीलिए लेते हैं कि मार्केट जब गिरता है तो पैनिक, जो विक्स राइज होती है पैनिक में होता है, ठीक है। जब मार्केट गिरता है 1,000 पॉइंट 2,000 कोरोना के टाइम पे, तो ऐसा कभी कोरोना के टाइम पे जो भी फॉल हुआ है तो कभी देखे कि बुल साइड में ऐसा राइजिंग ट्रेंड। तो प्रोटेक्टिव पुट जब का वैल्यू तभी बढ़ता है जब विक्स हाई होती है, तभी कॉल पुट का वैल्यू बढ़ती है। जो मार्केट फॉल होता है तो विक्स राइज होती है, तो विक्स हाई होगा तो आईवी राइज होगा, आईवी राइज होगा तो आपकी जितने भी पुट होते हैं उसकी भी प्रीमियम ज्यादा बढ़ते हैं। तो प्रोटेक्टिव पुट तभी आपको फायदा देता है। अगर मार्केट आप प्रोटेक्टिव कॉल खरीदेंगे तो वो शायद इन द मनी नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। पुट इन द मनी हो सकते हैं बट कॉल इन द मनी होना मुश्किल है, क्योंकि आप जो प्रोटेक्टिव पुट खरीद रहे हो, लेट्स से आप 16,000 की बात करें
तो मार्केट 500 फॉल एनी टाइम हो सकता है, 1000 फॉल एनी टाइम हो सकता है, बट क्या 1000 तेजी आपको विद इन 1 मंथ हो सकता है? नॉट पॉसिबल। इसलिए क्या करते हैं कि कॉवर्ट कॉल जो करते हैं कि एक फ्यूचर के एग्नेस्ट में 2 कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, बट हम एक फ्यूचर के एग्नेस्ट में 2 पुट शॉर्ट नहीं कर सकते। ये होता है कि ऑप्शन राइटिंग का ये है, जब मार्केट गिरता है तो या नीचे का प्रोटेक्शन दे दो, ऊपर में जितने चाहे आप कॉल शॉर्ट कर लो, तो आपको रिस्क नहीं है। पुट को ज्यादा, अगर पुट की पोजीशन ज्यादा रखोगे, लेट्स से पुट शॉर्ट किए, तो उसमें ज्यादा रिस्क है। तो इसीलिए प्रोटेक्टिव कॉल ठीक नहीं है, प्रोटेक्टिव पुट्स ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन। नहीं, क्वेश्चन ये था प्रोटेक्टिव कॉल होता क्या है? नहीं, वो होता नहीं है। लेट्स से हम उसकी रिवर्स ले लेते हैं, क्योंकि प्रोटेक्टिव कॉल अगर लेट्स से हम मार्केट में बियरिश है, कोई ये कह रहा है कि यार 16,000 की अब क्या चल रहा है 16,500, अब मार्केट में वो कह रहे हैं कि यार 17,500 जाएगा, तो मेरा पोजीशन जो नॉर्मली क्या है बियरिश में पोजीशन है, सब कुछ शॉर्ट करके मैं बैठा हूँ। तो इसलिए तो एक तो मार्केट अगर ऊपर नहीं गया, मार्केट ऊपर नहीं गया, लेट्स से 200-300 पॉइंट लेट्स से गया, बट आपने जो बाय किए हैं प्रोटेक्टिव कॉल को हिसाब से 17,000 या 17,500, तो अल्टीमेटली वो लॉस में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट कभी रातों रात बढ़ता नहीं है, वो अगर 1-2 बार हो गया तो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो जितने लोग ने कॉल राइटिंग कर रहे हैं किए हैं, तो उनको मौका मिलता है कि कॉल को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। लेट्स से आपने कॉवर कॉल किए हैं, ठीक है, तो आपने फ्यूचर बाय किए और कॉल आपने सेल कर दिए, तो अगर 17,000 कॉल अगर इन द मनी हो गया तो आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा और आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा कि आप उसको एक्सटेंड कर लो। बट जब पुट के टाइम आता है तो आप उसको एक्सटेंड करने का मौका नहीं मिलेगा। रात को उठ के देखेंगे यार 500 पॉइंट डाउन, फिर आप सुस्त रह जाएंगे, फिर चल दो देखते हैं, कल देखते हैं, फिर 500 पॉइंट डाउन। एग्जांपल कोरोना फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, वेरी शार्प। तो इसलिए प्रोटेक्टिव पुट को हम जो सर ने कहा कि जो प्रोटेक्टिव पुट, तो उसको हम ऐसे आज एडवांटेजेस हिसाब से देखेंगे। अगर मार्केट लेट से नहीं गिरा और आपको लॉस हो गया, ठीक है, जाने दो, बट उतने का प्रॉफिट तो आप यहाँ पे राइट करके तो मिल गया ना। और हमारे पास वो दिसंबर तक का टाइम है, वो नहीं है 1 मंथ और 2 मंथ का टाइम नहीं है, दिसंबर तक टाइम है। जाने दो, जीरो होने दो, क्या फर्क पड़ता है। हम एक्सेस नहीं करेंगे, वो चीज हमें कैलकुलेशन वही चल रहा है। हम अगर एक्सेस कर दे तो अल्टीमेटली वो हमारे ऊपर भारी पड़ जाएगा, वो इंश्योरेंस के वजह से। जी सर, बेसिकली जो आपका जो बता रहे हैं ये प्रोटेक्टिव कॉल, इट्स बेसिकली बियर कॉल स्प्रेड हुआ। आप ऊपर की बियर कॉल स्प्रेड हुआ, आपने ऊपर का कॉल खरीद लिया है, नीचे का कॉल बेचा हुआ है। नहीं, नीचे का कॉल बेचा है ना आपने नीचे का कॉल बेचा है, नियर कॉल बेचा है और फॉर कॉल खरीदा है ना, तो दैट इज अ बियर कॉल स्प्रेड ना। प्रोटेक्टिव पुट का मतलब सर, आपका जितने भी आपके पास निफ्टी है, रिलायंस है, एसबीआई है, टाटा स्टील है, ठीक है, आपको डर लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं गिर जाएगा और मुझे अगर मार्केट डाउन हो गया तो मुझे करीब करीब 2 लाख या 3 लाख का लॉस होगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ ना, निफ्टी में लिक्विडिटी होता है तो इसलिए मैंने निफ्टी को पुट को खरीद लेता हूँ। तो वहां नहीं, बुल पुट का मतलब ना, बुल पुट का मतलब होता है, बुल पुट का मतलब होता है कि आपने निफ्टी बाय किए, ठीक है, आप बुल पुट का मतलब ये होता है कि आपको निफ्टी बुलिश लग रहा है, आप इन द मनी को शॉर्ट करोगे या आउट द मनी या तो शॉर्ट करोगे और डीप आउट ऑफ मनी को बाय करोगे, दैट इज कॉल्ड बुल पुट। इसमें बुल पुट का कंसेप्ट मत रहिए, ये जीरो होना ही होना है। अगर ये कल को जीरो नहीं हुआ, आपका इन द मनी हो गया, मतलब मार्केट डाउन आ गया और आपका मोस्ट ऑफ द जो स्टॉक है वो बाइंग में है, तो वो भी लॉस दिखाएगा। तो आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट निफ्टी में मिलेगा, स्टॉक में नहीं मिलेगा। तो आपको 3 लाख या 4 लाख लॉस हो रहा था, वहां उस जगह आपको 2 लाख लॉस हो जाएगा। सिंपल मीनिंग यही है। बुल पुट अगर इसको यूज करेंगे तो कंसेप्ट ही अलग है। हम जबरदस्ती कंसेप्ट को अगर बदलने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा। वही बात है, कंसेप्ट नहीं बदलना चाहिए। ये तो दुनिया के इतने सारे लोग जो वेटरन्स लोग करते हैं ना, हमको उसी को फॉलो करना चाहिए अपने मर्जी से। आपने मेरे को बोला कि मैंने इम्प्रोवाइज किया वो जो स्टैगर्ड बाइंग का, ठीक है, वो सम रिस्क इट हैज बीन डन, बट हर एक जगह पर हम लोग करेंगे तो उसमें ज्यादा फायदा नहीं होगा। Any other question? So we can close. Good. अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो then we'll close today's Independence Day. Let's celebrate. So then thank you very much, मोहंती जी बहुत बहुत धन्यवाद on behalf of all the expert group members.
Really, your presentation was excellent, and it has really enlightened everybody how to do the OWS, what are the precautions and what are the pitfalls, everything they were understood. Thanks a lot, and thank you all the members. Then we'll see about the next webinar. I will announce shortly. Okay. Thank you, Kothari sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Thank you so Kothari much, sir. sir. Thank you, Mohan. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. You all. Thank you all. Thank you. I'm closing now.